कौन सी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको आज की डेट में दिखती है कपल्स के बीच में? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इनफिडेलिटी। टॉप 3 क्वालिटीज हो सकती हैं जो एक अच्छी शादी के लिए बहुत जरूरी हैं। आपको दिख रहा है डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं? डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, हाँ मैं मानती हूँ, बट टॉक्सिक मैरिजेस में भी तो है ना। किस पॉइंट पे एक बंदा ट्राई करना बंद कर सकता है कि बस हो गया, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, ये इंसान नहीं बदलने वाला है? डॉक्टर निशा खन्ना is a leading marriage counselor and psychologist and a 3-time TEDx speaker, dedicating thousands of hours to listening, understanding and guiding individuals and couples through their challenges. Today, she also focuses on helping people overcome a wide range of mental health concerns, empowering them to lead healthier, happier lives. एक हमने स्टेटमेंट कई बार सुना है कि दोस्ती होनी चाहिए शादी में। प्यार दोस्ती है, मैं इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी हैं अपने करियर में जहाँ पर पति पत्नी बहुत अच्छे दोस्त है, तब वो पति पत्नी नहीं है। हमारे में प्रॉब्लम है इमोशनल अवेलेबिलिटी ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर अगर पैसा कमा रहा है या अगर उसके पास टाइम भी है तो पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट देता ही नहीं। कैसे ठीक करें इसको, फिक्स कैसे करें? तो पहली चीज जो मुझे लगता है 40% इंटेंशनल एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। मान लीजिए मेरा दिल टूट गया, अब मैं गाना सुन रही हूँ, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो इंटेंशनली तो मैं अपने आप को सैडनेस को बुलावा दे रही हूँ। मैं कहती हूँ अगर ब्रेकअप हो गया है, जिंदगी में कुछ भी बुरा हुआ है, दिन में आधा घंटा रोज डेडिकेटेड टाइम देके रो लो। 23 hours 30 minutes you have to live life। आप पहले से ऐसे हो या एज के साथ ऐसा हुआ है? नहीं, मैं एक्चुअली में बड़ी शांत बच्ची थी। मेरी मदर मुझे बिठा देती थी एंड शी विल से ये लड़की तो कुछ बोलेगी नहीं। ये नहीं दिखता, आपको तो बोलना आता है और आप बहुत बोलते हो। अच्छा है। आपको कोई अपना बहुत इंटरेस्टिंग केस याद है दैट यू वांट टू शेयर? Because I dealt with one couple where the parents brought the couple to me for marriage counseling. It's a painful basically thing and 2 years down the line, one day her wife messaged me and got to know he's no more. All of us in our lives have at least once faced this dilemma of whether to go to a psychologist or not, whether to see one or not. So, just in case you've been struggling with this idea and you haven't gotten a chance yet, I have brought one of the best psychologists of the country to you. Dr. Nisha Khanna is a leading psychologist, emotional intelligence coach, relationship expert and marriage counselor based in Delhi with over 22 years of experience in mental health and wellness. Throughout her career, she has provided consultation to more than 30,000 individuals globally. She is known for her compassionate approach and scientific methods rooted in psychology, yoga and emotional intelligence. You probably remember her from this UTV Bindaas show, Emotional Atyachar. She's acted as a blogger, columnist and TV and radio panelist for over 15 years. Yes, she appears on TV very often. And she's done multiple TEDx talks. She's been awarded India's Best Marriage and Family Counselor by India Healthcare Awards in 2018, which is a big deal. If this is not enough, I don't know what will be. I've got the best psychologist for you and I'm really hoping that you'll make the best of this episode and watch it till the end. All your questions about marriage, your relationships, your relationship with your partner especially, your relationship with your in-laws, your doubts, your dilemmas, how to deal with your children, what to do in specific scenarios of life, we've covered entirely everything. And the episode was going on for so long that I wouldn't use the word stretching. It was going on for so long, it was so exciting that we had to take a break and I actually made her tea during the episode and then we continued later and again went on for an hour or so. So yes, I am absolutely thrilled to bring you Dr. Nisha Khanna. Please make the best of this episode, share it with people you care about, share it with your family, your friends, help them, help yourself and throw in any question or any query that you have in the comments of this video. She will be looking into it. If you want to reach out to her, you'll find all the details in the description of this video. Thank you very much. Let's hop into the episode now. Okay, so Dr. Nisha, most welcome to my podcast and I'm so grateful that you found time for us. Thank you. Thanks for the inviting. You're welcome. And Thanks for your kind words. No, जब आपकी प्रोफाइल मैंने खुद स्टडी करी तो मुझे लगा भाई मेरा जैकपॉट लग गया है
और मेरे जितने सवाल थे वो सारे आज मैं आपसे पूछने वाली हूँ. आपकी मर्जी, आप उसे कितनी लेंथ में आंसर करना चाहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय आस्किंग, आप कपल्स के लिए थेरेपी करते हैं, राइट? कौन सी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको आज की डेट में दिखती है कपल्स के बीच में? That one thing that keeps coming up every now and then, one issue. I would say there are a couple of issues. So it's very difficult to name one issue. But I think so, conflict resolution and infidelity. Infidelity. Yeah. Okay. Current, I would say, topic. Also, I would say highlighted topic. There is no doubt about that. And conflicts तो every couple have. तो जब झगड़े होते हैं तो उनको रिजॉल्व कैसे करते हैं वो कपल्स को और हम इंडिविजुअल्स को आता ही नहीं है. इनफिडेलिटी पे आपका क्या स्टांस है? लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट इट? क्योंकि ऐसा ह्यूमंस के लिए बोलते हैं दैट दे आर नॉट सपोज टू बी मोनोगमस. इज इट ट्रू? डू यू बिलीव इन दिस? आई थिंक सो. होता क्या है कि आप बिलीव करते हो मोनोगमी में, आप रहना चाहते हो. इट्स अ चॉइस. आई वुड से इट्स अ चॉइस टू बी विद और कमिटेड टू वन पर्सन. इफ यू वांट यू कैन, then nothing is impossible. They'll say nature it's not the part of a nature. I believe that if you want to do something, it's nothing wrong. And definitely when people are into relationships, they mostly say about this, that human are polygamy by nature. They are not monogamy. So I would say, I believe it is a choice, intentional choice. You want to do it because when it happens once, it's okay. गलती सबसे होती है, मिस्टेक सबसे होती है. बट वेन इट इज कीप हैपनिंग एंड यू नो इट इज हार्मिंग योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप को नुकसान हो रहा है इससे, आपके पीस ऑफ माइंड को नुकसान हो रहा है, पर फिर भी हम बार बार वही चीज़ें करते हैं. तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं एज ए एक्सपर्ट देखती हूँ तो इसका क्वेश्चन आता है, मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन अस एज अ पर्सन ऑल्सो. समटाइम्स एक होता है सिचुएशनल, आप किसी रिलेशनशिप में गए बिकॉज यू हैव टू मच ऑफ पेन. पेन मीन्स कुछ ऐसा था जिसमें आप हेल्प आपके लिए विबल नहीं था, तो आपको सामने वाले ने हेल्प किया. बट एक है समटाइम्स वी नो वी आर इन ट्रबल एंड दे नेवर वांट टू गेट आउट ऑफ दैट. और मैं ऐसा मानती हूँ, मुझे जब मेरा एक्सपीरियंस है 23 ईयर्स का, उसमें मुझे लगता है इनफिडेलिटी में मोस्टली मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है. 90% ऑफ टाइम they have low EQ issues, यानी कि इमोशनल कोशेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम होता है. और उसमें अगर हम मेन फैक्टर माने, कई बार सेल्फ अवेयरनेस में प्रॉब्लम होता है, कई बार इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम होता है. बिकॉज इस इश्यू की वजह से एक इंसान इस रास्ते पर चलता है. मतलब हमारा ये काम होता है काउंसलर्स का, जैसे आप एक जज के पास जाते हैं, एक पर्सन ने कत्ल किया है, जज तय करता है उसको सजा क्या देनी है. तो जब आप मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, आप दोनों के बीच में इश्यूज है, अगर किसी एक से गलती हुई तो हम ये फाइंड आउट करते हैं वो गलती का रीजन क्या है. क्या ये गलती अपॉर्चुनिटी थी? क्या ये गलती स्वभाव का हिस्सा था? क्या ये गलती से हुई? क्या इस गलती को बार बार करने की आदत है? क्या रूट कॉज है? क्योंकि जज सजा तय करता है आपके मोटिवेशन को देख के, इंटेंशन को देख के. आपसे गलती पहली बार हुई है, कत्ल पहली बार हुआ है, चोरी पहली बार हुई है, बार बार हुई है, या आपकी फितरत है. वही हम मैरिज काउंसलरी में डिफाइन करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ये क्यों हुआ. और अधिकतर 90% केसेस में आपको बता रही हूँ, उसमें इसका रीजन जो पाया जाता है वो है इमोशनल इंस्टेबिलिटी. इसको कैसे समझें अपने बारे में? मतलब किसी को अगर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में, चाहे उसकी शादी हो गई हो या एक उसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, अगर उसको ऐसा अट्रैक्शन किसी और के लिए महसूस हो रहा है, वो इंसान उसको अपने लेवल पे रिजॉल्व कैसे करे? बिकॉज आई फील द अट्रैक्शन इज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग. आप कैसे अपने आप को कंट्रोल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में शायद उतनी ताकत नहीं होती कि अपने आप को रोक पाए उन मोमेंट्स में. आई डोंट नो. हाँ, सो क्वेश्चन आ गया ना, सेल्फ कंट्रोल. Then again, it is the part of emotional regulation. And how do you strengthen that? अगर जैसे किसी को पता चल जाए भाई मेरे नहीं चलता अपने ऊपर कंट्रोल, तो अभी वो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता है? आपकी क्या 2 या 3 टिप्स हो सकती हैं कि ऐसे मोमेंट में आप क्या करो? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप किसी इंसान के साथ इतने समय से हो तो फिजिकल अट्रैक्शन आई थिंक 3 या 4 नंबर पे चला जाता होगा.
एक रिलेशनशिप में वो टॉप प्रायोरिटी शायद नहीं होती है। मतलब मेरी भी शादी को इतना टाइम हो गया है, अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे बीच में सबसे अच्छी बात क्या है, मैं कभी भी सेक्सुअल इंटिमेसी को नंबर 1 पे नहीं रखूंगी। नहीं, बट अगेन डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन। तो ये किसी के लिए नंबर 1 पे हो किसी सकता के है। लिए नंबर 1 पे हो सकता है। देखिए, दुनिया में भगवान ने सब तरह के पौधे बनाए हैं, किसी को कम धूप, किसी को ज्यादा धूप, किसी को कम पानी और किसी को ज्यादा पानी की जरूरत है। तो हम इंसान भी तो वैसे हैं ना, हम ये नहीं कह सकते ना हम सबको एक ही बॉक्स में डाल सकते हैं। True. किसी की फिजिकल Absolutely. इंटीमेसी की नीड ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, Yes. और किसी की बिल्कुल Yeah. नहीं हो सकती। Yes, yes, Am I right? yes, Maybe yes. I can live without a physical intimacy for years and years, और मेरे लिए वो शायद 100th नीड नंबर पर आएगी। हो सकता है वो किसी के लिए 10th नंबर पर आए। तो हम ये नहीं कह सकते जिसके लिए वो फर्स्ट नंबर पर है वो गलत है और जिसके लिए 100th नंबर पर है वो गलत है। You're right. You're absolutely तो right. हम अगर इस जजमेंट पर मानेंगे कि जैसी मैं हूं या जैसा मैं हूं मेरा पार्टनर भी वैसा हो, हाँ, तो ये बड़ा तो मुश्किल हो वहां जाएगा। मुश्किल है। और रही बात सेल्फ कंट्रोल की, देखिए किसी के लिए अगर जनरल है, किसी के लिए ये हो सकता है क्राइटेरिया मुझे मेरा पार्टनर चाहिए जो ज्यादा पैसा कमाता हो। नथिंग रॉन्ग इन दैट। आपको चाहिए, आपको क्लैरिटी आपको चाहिए तो ठीक है। किसी को ऐसा पार्टनर चाहिए जो दिखने में बहुत स्मार्ट हो, 6 फीट हाइट, उसके मेरे को 6 चाहिए पैक्स था। हो, उसके मुझे 6 चाहिए पैक्स था। हो, और कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर हो। इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट अगर आप ये कहें ये गलत है, देखिए जिंदगी जो है वैसे ना तो हाइट से कटती है, ना 6 पैक से कटती है, ना सूरत से कटती है। जिंदगी तो सीरत से कटती है। जिंदगी सिर्फ पैसे से भी नहीं कटती है। बट अगर मुझे कोई आके बोलता है मैम सुबह उठ के रोज इसी का चेहरा देखना है, और वो इंसान भी खूबसूरत ना हो तो क्या फायदा। बात सही है। तो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन, किसी की हाइट, किसी की स्माइल, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ना हो। मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो सकती हूँ उसकी इंटेलिजेंस के लिए। मुझे कोई आके कॉम्प्लीमेंट करे, निशा यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी, आई मे फाइंड इट, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस गाय। Yeah. But if someone will come and tell me, Nisha, you are quite intelligent, you are very impressive, maybe I like that person, love to talk to that person. So I'm a different human being. Yeah. But it's किसी और के लिए ये सुनना कि तुम बहुत हॉट और सेक्सी लग रही हो बहुत प्राउड की बात हो सकती। True. मुझे लगता है ठीक है यार, मैं हूं तो हूं, एंड आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ फॉर एनीवन एल्स। वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, मैं 50 साल की होने वाली हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो अगेन इट्स द चॉइस, इन पर्सनल चॉइस। तो पर्सनल चॉइसेस को किसी दूसरे पर नहीं लाद सकते। बट फिर हम इस पे कैसे लाइन ड्रॉ करें? अगर हम यहाँ इनफिडेलिटी की बात कर रहे हैं तो हम कैसे किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरा सेल्फ कंट्रोल तो बड़ा अच्छा है तो तुम्हारा भी होना चाहिए? ये हम कैसे उससे बंदे से देखिए, उम्मीद करें? पहले जिसके साथ हम शादी कर रहे हैं उसके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी है। ज्यादातर लोगों को शायद पता ही नहीं होता है। अरेंज मैरिज में तो यू हार्डली टॉक। नहीं, आजकल तो जमाना बदल गया, अरेंज मैरिजेस तो ज्यादा पॉपुलर होती है लव मैरिजेस नहीं, से, of course, क्योंकि of आजकल course. अरेंज मैरिजेस में भी आप कपल मिलते हैं आपस में, इवन आजकल तो रिलेशनशिप भी बन जाते हैं। एवरीवन वांट टू ट्राई इट आउट सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपल्स आते हैं जहाँ पेरेंट्स एक टाइम पर आके बोलते हैं अरेंज मैरिज नहीं करना है, या ये लड़का ये लड़की हमारे लिए सही नहीं लग रहा है, एंड देन द कपल स्टैंड नो अब हमें एक दूसरे से ही शादी करनी है, आपने तो चुना था, अब हमें करना है, बिकॉज अब हमारा एक कनेक्ट बन गया है। ट्रू ट्रू। सो आई वुड से चाहे वो मेट्रोज हों नॉन मेट्रोज हों, जमाना बदल रहा है। बट हाँ, मैं फिर भी कहूँगी स्मॉल टाउन्स की बात करेंगे, कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा पहले क्या हम खुद को समझते हैं। अगर हम खुद को समझेंगे तो चॉइसेस में जो है प्रिकॉशंस लेंगे। तो क्वेश्चन वहाँ आता है, आप मार्केट में गए हो शॉपिंग के लिए, आपको खरीदना क्या है? आपको टी शर्ट खरीदनी, शर्ट खरीदनी है, फुल स्लीव्स खरीदनी है, हाफ स्लीव्स खरीदनी है। जब आपको क्लैरिटी है ना तो कंफ्यूजन ही नहीं है। मुझे रेड खरीदना है, वाइट खरीदना है, तो आप शॉपिंग करके भी झट से आ जाओगे। बट जब हमें क्लैरिटी नहीं है, स्पेशली अगर हम यंग जनरेशन्स की बात करें, जेनजीज की बात करें, जिस एज ग्रुप के लोगों को आप डील करते हैं उनकी बात करें, तो मुझे लग रहा है जब हमारे को क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस है ना तो चीज़ें सबसे ज़्यादा आसान वहाँ पर है। तो अगर किसी कपल के बीच में ये प्रॉब्लम आती है तो आप क्या उनको एडवाइस देती हैं ऐसे में? भाई किसी ने चीट कर लिया रिलेशनशिप में, जो आज की डेट में मुझे लगता है बहुत कॉमन हो चुका है, और अक्सर ये केसेस हम मूवीज़ में तो हम देखते ही रहते हैं, शोज़ में हम देखते ही रहते हैं, रियल वर्ल्ड में कितना होता है पता नहीं चलेगा क्योंकि कोई किसी को बताता तो है नहीं ऐसे जाके। आई बिलीव, और मुझे ऐसा लगता है और मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है एज अ मैरिज काउंसलर,
कि इनफिडेलिटी से ओवरकम इजीली किया जा सकता ओके, आई एम शॉक्ड एट दिस बिकॉज पर्सनली मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे इसमें मेलो डाउन होना है तो मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं, क्योंकि मेरे लिए तो इट्स लाइक अ डील ब्रेकर। अब जैसा आपने बात की, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे कपल्स के साथ काम करता है, बट 90% कपल्स इस टफ टाइम से गुजर आते हैं। मैंने जो आपको बोला किस इंटेंशन से वो हुआ है, जब आपने इंटेंशंस को समझ लिया तो चीजें फिर भी हैंडल करना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर हम उसे ले देते हैं। आई वुड नॉट से कि गलती, ये अगर गलती है तो ये कितनी बड़ी गलती है, बट मान लीजिए एक इंसान ने गलत किया भी या उसका अट्रैक्शन हुआ है सामने वाले के साथ, तो किन कारणों की वजह से हुआ है? जैसे आपने बोला कि मुझे फिजिकली स्मार्ट पार्टनर चाहिए था, हाँ, मेरे लिए वो एक छोटी सी प्रायोरिटी थी, बट हाँ, वो डील ब्रेकर कभी नहीं था। हाँ डील ब्रेकर हाँ, नहीं था, नहीं। बट तो हमें पहले बात करनी ना, हमारे नॉन नेगोशिएबल्स क्या है जिनके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती? ज्यादातर लोग करते हैं इसके बारे में बात बिफोर दे गेट शायद मैरिड। पता ही नहीं होता जिसके बिना हम नहीं चल सकते। कितने लोगों को पता है मुझे क्या करना है? बहुत कम लोगों को, आई गेस। जिसे क्लैरिटी हाँ। बोलते हैं ना, मतलब आई डू नॉट नो, बट जब मैं कॉलेज टाइम पे थी तो मुझे कोई पूछता था तो क्या करना है, तो बोलती थी क्लिनिक खोलना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है। यू वर तो क्लियर। क्लैरिटी थी। शायद उससे पहले जब ग्रेजुएशन में थी तो बिजनेस वुमन बनना है। तो क्लैरिटी के साथ ही आप आगे चलते हो ना। बट अगर हम रैंडमली कर लेते, मेरे दोस्त ले रहे थे, क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने भी उन्हीं के साथ कर लिया। मम्मी पापा ने बोला तो मैंने भी यही कर लिया। मैंने तो सी ऐसे यही ही किया बेस्ट था, मेरे मार्क्स इतने थे तो मैंने ये सब्जेक्ट चूज कर लिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्लैरिटी नहीं है ना हम क्या चाहते हैं। दैट्स ट्रू, एंड उसमें कुछ गलत भी नहीं है ना? नहीं, गलत तो कुछ नहीं है, पर हाँ। रास्ते पे चलेंगे तो हमें पता चलेगा ना। और हम अपने आप को भी माफ करें ना, गलतियां तो हमसे होंगी। सामने वाले से माफी की मूंगी तो हम तब मांगेंगे ना जब हम ये मानेंगे कि हम इंसान हैं, हम गलती करेंगे और गलती करके सीखे भी। प्रॉब्लम वहां आती है जब आपसे गलती हो जाए पर आप उसको सुधारना नहीं चाहते। जैसे आपने बोला कि अट्रैक्टिव हो रहे हैं दूसरे पार्टनर की तरफ, जब भी आप रिलेशनशिप में, तो पहले अपने आप से सवाल करिए ना कि क्यों क्यों हो रहा अट्रैक्ट है हो ऐसा? रहे हैं? मेरी नीड क्या है जो मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा? नहीं, हो सकता है कि मिल रहा हो, बट हो सकता है वो दूसरा बंदा बहुत स्मार्ट हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, सब अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। देखिए, जब मेल्स का टाइम आता है तो मैं उन्हें बोलती हूँ, मुन्नी और शीला तो आती रहेंगी। am I right? मार्केट में जाएंगे, आप घर खरीदते हैं, आप मोबाइल खरीदते हैं, नया मॉडल अपडेट होता रहता है मार्केट में। am I right ना? You can't compare yourself with other people. There is a term called realistic checkup, realistic optimism. We need to evaluate ourselves ना। अगर मुझे कोई आके बोलता है कि मुझे आज BMW खरीदना है, हाँ, no problem. There is no doubt about that. You can make a plan. Have a smart goal. yeah. It's nothing is unachievable. But अगर कोई मुझे आके ये बोलता है नहीं मुझे तो NGO चलाना है, that's also good enough. आप क्या करना चाहते हो? सबको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, मत बनो। बट जो करना चाहते हो उस पर काम करिए ना। उसी तरह जब आप रिलेशनशिप में हो तो वहां प्रॉब्लम है जब आप डबल टाइमिंग करते हो। चल पाती होंगी वो चीजें? मुझे लगता है चल ही नहीं लंबे पाती समय तक होंगी। नहीं चल पाती ना। और अंतर्ध्वन तो चलता है ना, उसी तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी कहते हैं। मतलब आप वैसे तो शायद थोड़ा मजा ले रहे हो, बट आप अदरवाइज लाइफ में बहुत डिस्टर्ब्ड हो बिकॉज योर डबल टाइमिंग। बिल्कुल ऑब्वियस है, आपके दिमाग में जद्दोजहद तो रहेगी ना। गिल्ट भी रहेगा, बिल्कुल guilt भी जिंदगी रहेगा। भर का 100 बार ख्याल आएगा कि कन्फेस कर दूं, कन्फेस करने का भी आ सकता है और कन्फेस ना करने का भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। छुपाने का। बट छुपाने का भी आ सकता है। और कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि सब कुछ सच मत बताइए, गलती तो सबसे होती है। आप क्या सजेस्ट करती हैं रिलेशनशिप में कितना सच बताना चाहिए अपने पार्टनर को? देखो, एक ना मूवी आई थी शायद मेट्रो, लाइफ इन अ मेट्रो। यस, शिल्पा शेट्टी। आई थिंक सो, फॉरगॉट दैट नेम। उसमें एक मूवी में ना, उसमें एक डायलॉग था किसी मूवी में, आई डू नॉट नो द रिमेंबर, मे बी आई एम मिस्टेकन ऑल्सो अबाउट दिस। ईमानदारी के साथ समझदारी होना जरूरी है। ओके, हाँ। आप ईमानदार हैं, समझदार नहीं, तो वो बेवकूफी है। क्या आपका पार्टनर उस सच को ले सकता है? वो भी तो इतना जरूरी है। मतलब आपने गलती करी और फिर बोझ उस पे डाल दिया कि अब तुम इससे रिकवर करो, क्योंकि मैंने तो सब बता दिया है ना। मेरी गिल्ट तो झड़ गई मेरे ऊपर से सारी। हाँ, बट सामने वाले में भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना उसको लेने की। ओके, आई गेट। मतलब आप दबे लफ्जों में यहाँ क्या कहना चाह रही है मैं समझ गई। सामने वाला उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए
और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या उसका उतना इसको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कहेंगे, पर उसके लिए जैसे आपने बोला मेरे लिए डील ब्रेकर हो गया ये, हाँ, आपके लिए डील ब्रेकर है, इट्स ओके, बट मुझे लगता Am I है wrong here? Am I wrong here? नहीं, रॉन्ग और राइट की बात नहीं है, बट ऐसा कौन सा इंसान है दुनिया का जिससे गलती नहीं होती है? और वो गलती का रीजन क्या है? मैं अगेन कह रही हूं, हम कॉज ढूंढे ना, हम कॉज को ढूंढेंगे तो हमें समझ में आएगा ना। जब हमें कारण समझ में आ गया, लोग बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इज द पार्ट ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। Yeah, आई okay. एम सॉरी, सेल्फ कंट्रोल के बहुत सारे माध्यम है, आई एम राइट? क्या आप उन माध्यम को अपनाते हैं? और इतना ही, अगर आपकी नीड, मान लीजिए इंटीमेसी की नीड आपकी ज्यादा है, आपकी फिजिकल इंटीमेसी की नीड ज्यादा और आपका पार्टनर आपको कम दे रहा है, डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक। माई नीड इज मोर देन योर्स, हाउ वी कैन रिजॉल्व इट? Yes. इन स्पाइट ऑफ गोइंग आउट, टेल द पर्सन ना। मोस्टली होता है कई बार इनफिडेलिटी के केसेस में, हम पार्टनर को बोलते हैं अपने पार्टनर की तरफ ध्यान दीजिए, यू आर टू मच ऑक्युपाइड इन योर बिजनेस और इन वर्क, यू आर इग्नोरिंग योर पार्टनर। Yes. उसकी इमोशनल नीड और उसकी फिजिकल इंटीमेसी की नीड के लिए आप अवेलेबल नहीं है। अब मान लो 15 साल की शादी में 10 साल से फिजिकल इंटीमेसी ही नहीं है, 25 साल की शादी में 10 बार इंटीमेसी है, फिर भी वो 25 साल से साथ रह रहे हैं। अब ऑब्वियस है, हो सकता है उस इंसान को ऐसा भी कोई इंसान मिल जाए जो उसको समझता हो, उसकी नीड उसके साथ बन जाए। Yeah. Am I right? Yes. 25 साल से उससे कुछ नहीं हुआ होगा, बट वो एक मोमेंट के टाइम पर शायद उसको लगा वो क्लिक कर गया दूसरे पार्टनर के साथ। अब इसके लिए उसके 25 सालों को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी मेहनत, उसने जो कुछ उसने भी भी किया। तो उस रिलेशनशिप में टाइम दिया होगा। Yes. और अगर ये चेन है, दिस पार्टनर इज कीप डूइंग, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। When you said it, it should be a deal breaker. If it is not even, then this person needs to go for a treatment. It may be the person must be suffering from any psychiatric illness. Okay. मतलब अगर बार बार हो रही है गलती, तो वो आपकी आदत या फितरत का हिस्सा है। समझ गई। मतलब अगर बार बार हो रही है तो फिर डेफिनेटली सीरियस लेवल पे एड्रेस करना जरूरी है। वन ऑफ केस है तो खुद में झांको। फिजिकल इंटीमेसी के रूट्स कहीं ना कहीं इमोशनल इंटीमेसी में छुपे होते हैं ना, हम ऐसा मानते हैं, है ना? नहीं, हाँ। ऐसा है, होता है, बिल्कुल होता है, देयर इज नो डाउट। बट शायद हम बोल सकते हैं 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जो टिपिकल फिजिकल नीड्स को लेकर ही होते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इट्स डीपली इनहेरिटेड विद इमोशनल इंटीमेसी। समटाइम्स इट इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल ट्रॉमा, molestation, rape, wrong exposure of, I would say, physical intimacy through different mediums. क्योंकि हमें जो नॉलेज मिलती है जो अलग अलग वेबसाइट से, वो एक्चुअली में नॉलेज तो अधूरी होती है ना। प्रैक्टिकल लाइफ और इमेजिनेटिव वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है। बॉलीवुड की मूवीज इमेजिनेटिव है, कमर्शियल मूवीज है, हर थोड़े सीन के बाद एक गाना आता है, लाइफ मिनटों में सालों का चेंज ले लेती है, पर रियलिटी तो बहुत डिफरेंट है ना। तो हम इमेजिनेटिव दुनिया में ज्यादा रहते हैं, रियलिस्टिक वर्ल्ड में कम, और उसी से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। शाहरुख खान को देखकर हर पत्नी ये चाहती है मेरा हस्बैंड शाहरुख खान बन जाए। हाँ, 5-10% भी चलेगा। और शाहरुख खान से इम्प्रेस्ड मर्द ये सोचते हैं हर पत्नी काजोल बन जाए, साड़ी में शिफॉन की आए। राइट? तो एक्सपेक्टेशंस क्या है? तो हम कमर्शियल बॉलीवुड से इंस्पायर हो रहे हैं। इसको रोका नहीं जा सकता है ना। यही तो संगति है आपकी, यही इस टाइम पे यही संगति है ना, इसी के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। नहीं, बट बिल्कुल करना चाहिए, पर इमेजिनेटिव से रियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आना चाहिए ना। मूवी देखते 3 घंटे बाद खत्म हो जाती है, घर आकर हम लाइफ जीते हैं। Am I right? कितने घंटे आप शिफॉन की साड़ी पहन के सो सकती है, खा सकती है, पी सकते हैं, आपको पजामाज में आना ही होगा। यस। Am I right? तो जब आप सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, तो अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है आपके एंड पर हो रही है, तो आपको देखना है ना क्यों हो रही है, किस तरह मुझे उसे रेक्टिफाई करना है, क्या चीज की कमी हो रही है। देन आई हैव टू टॉक। इट मे बी द लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, इट मे बी लैक ऑफ द इंटेलेक्चुअल टॉक, इट मे बी लैक ऑफ spent of quality time. Yeah.
क्योंकि आपकी लव लैंग्वेज आपके पार्टनर की अगर लव लैंग्वेज के साथ मैच ही नहीं कर रही तो कनेक्शन कहाँ से बैठेगा? नहीं बैठेगा. I can actually relate with what you're saying. मगर Yes. अगर आपको इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशंस पसंद है हाँ. और मुझे गॉसिप पसंद है, वाइस वर्सा, मुझे इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशन पसंद है, आई हेट गॉसिप, या तो मेरी और आपकी नहीं चल सकती, नहीं लंबे बन समय सकती बात. लंबे समय तक नहीं बन सकती. और बनेगी तो हमें एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना होगा. यार मैंने तुम्हारा गॉसिप सुन लिया, लेट्स टॉक समथिंग इंटेलेक्चुअल. थोड़ा या मैं fun तुम्हारे angle. साथ, हाँ, या मैं तुम्हारे साथ जो है वो इंग्लिश मूवी देख लेती हूँ, तो मेरे साथ यो सड़ी सी गोलमाल वाली देख लो मूवी, जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े. एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड के साथ इस तरह की बातें कर रखी हैं. You're right. It So helps. this is how you come on the terms, because 90% couples are complementary, एक दूसरे के, जिसे हम ऑपोजिट बोलते हैं. Only 10% couples are symmetrical. Symmetrical मतलब जिनकी सोच, जिनकी आदतें, सब कुछ एक जैसा है. मिरर करती हैं. हाँ, वहां पर ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं. ओ या. और कॉम्प्लीमेंट्री कपल में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा ज्यादा है, है. क्योंकि आपको आधा गिलास खाली और आधा भरा हुआ मिल रहा है. तो Right. दोनों, एक पॉजिटिव भी देखता है, एक नेगेटिव भी देखता है. हम्म. तो क्या करते हैं, अगर एक इंसान ज्यादा इमोशनल है, तो अगर जो कम इमोशनल लॉजिकल है, मान लीजिए मैं लॉजिकल हूँ और आप इमोशनल हो, तो मैं लॉजिक के तरीके से सोचूंगी और मैं समझ गई हूँ कि आप इमोशन से सोचते हो, तो मुझे पता है यहाँ आप इमोशन से सोच रही हैं. हम्म. Am I right? So I will adjust according to the, मुझे मेरा पार्टनर इमोशन से सोच रहा है, मुझे इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है. हम्म. और वो तब हो पाएगा जब मैं आपके प्रति कनेक्टेड होंगी, मेरा लगाव होगा. वक्त भी मदद करता है इसमें, है ना. जब टाइम गुजरता है तभी तो समझ में आता है ये चीजें. कहाँ एक साल में कैसे, मुझे लगता है कुछ टाइम में कैसे समझ में आएंगी. आप टाइम स्पेंड करते हो तभी समझते हो ना कहाँ आप डिफरेंट हो दूसरे से. और अगर डिफरेंट भी है तो डिफरेंट होना प्रॉब्लम नहीं है, किसी म्यूचुअल कंसेंट पर आना प्रॉब्लम है. मान लीजिए एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है. अब इंट्रोवर्ट का तो हफ्ते में क्या 15 दिन में भी एक बार बाहर निकालो घर से चलेगा, और एक्सट्रोवर्ट को तो हर दूसरे दिन पार्टी करना है. या. तो इंट्रोवर्ट ये कह सकता है ना, मैं तुम्हारे साथ हफ्ते में एक बार जा सकती हूँ या जा सकता हूँ. हाँ. तुम्हें जाना है हफ्ते में 2 बार जाओ ना, तुम नो अकेले प्रॉब्लम. जाओ. हाँ. पर सही इस बात. बात पर भी अगर झगड़ा हो, तुम बाहर जाना नहीं चाहती, तुम लोगों से मिलना नहीं चाहती, या तुम लोगों से मिलना नहीं चाहते, तुम्हें लोग पसंद नहीं है. देखिए, प्लास्टिक कभी स्टील नहीं बन सकता, स्टील कभी कॉपर नहीं बन सकता. तो हम पहले खुद को क्या है वो एक्सेप्ट करें, फिर दूसरे को भी एक्सेप्ट कर लेंगे दूसरा कैसा है. मतलब इसको अगर बहुत सिंपल लफ्जों में कहें तो क्या ये सही होगा कि चीज़ों को लाइट लेना ज़रूरी है, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा कैजुअल. हाँ ठीक है, उसने मना कर दिया, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है. डोंट टेक थिंग्स पर्सनली. एवरीथिंग अगर आप पर्सनल लेना शुरू करोगे तो चीजें नहीं होंगी ना. हर वक्त लड़ाई होगी फिर तो. और दूसरा, सामने वाला इंसान भी रिश्ते में आ रहा है तो बैगेज के साथ आ रहा होगा, आप भी अपने बैगेज के साथ आ रही होंगी. वो बैगेज क्या है? आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स. ना तो आप उसको अलग कर सकते हो, ना सामने वाला अलग कर सकता है. आपके घर का माहौल अलग होगा, सामने वाले के घर का माहौल अलग होगा. या. तो उसके भी से थोड़ा आप एडजस्ट करोगे, थोड़ा दूसरे वाला एडजस्ट करो, तो अपने आप गाड़ी चलेगी. प्रॉब्लम वहां सबसे ज्यादा आती है जहां एक एडजस्ट करे और दूसरा कहे मैं तो नहीं बदलूंगा, तुम ही बदलोगी, तुम्हें इस घर में रहना है. प्रॉब्लम वहां है. या मैं नहीं बदलूंगी, मैं तो शादी से पहले भी 9 बजे उठती थी, शादी के बाद भी 9 बजे उठूंगी. प्रॉब्लम वहां है. सो टॉक इट आउट. नहीं, बात भी करो और समझो भी. बातें करने से नहीं होगी. बहुत बार आप बोल देते हो, यार मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ हफ्ते में एक बार घूमने चलो, या मेरे साथ अकेले कॉफी के लिए चलो, डिनर के लिए चलो. अब वो उसके लिए परिवार है, जब जाना है तो परिवार के साथ जाना है. हाँ. जैसे बढ़ती उम्र के साथ कपल्स पेरेंट्स बन के रह जाते हैं, पति पत्नी नहीं. यस. वो भी एक Majority. रीजन है ना. जैसे आजकल के जो लेट टाइम पर मैरिजेस में 20, 25, 30 साल बाद डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्योंकि हम माँ बाप बन के रह गए. पुराने जमाने में क्या होता था, शादी हो गई, बच्चे पैदा कर लो, शादी बहुत बढ़िया, रिश्ता सुधर जाएगा. वो रिश्ता नहीं सुधरता था, आपका मन डिवाइड हो जाता था. पहले ध्यान पति पर, बच्चे पर हो जाता था. डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे आप. तो मेरा एक रिसर्च पेपर भी निकला हुआ है इस पर, मेंटल हेल्थ ऑफ हाउसवाइफ्स. Okay, we'd love to list that down in the description of the video. सो और दूसरी हमारे में प्रॉब्लम है इमोशनल अवेलेबिलिटी ऑफ पार्टनर, और वो भी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग वुमेन कम है, हाउसवाइफ ज्यादा है. तो पार्टनर अगर पैसा कमा रहा है या अगर उसके पास टाइम भी है, तो पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट देता ही नहीं है. हाँ, उसको लगता है मैंने अपना कर दिया.
मैं घर पे पैसा ला रहा हूँ, मैंने अपना काम कर दिया। हाँ, इसको कैसे ठीक करें, इसको फिक्स कैसे करें? ये तो पहली बहुत ही चीज- इनग्रेन्ड होता है। हाँ, तो पहली चीज जो मुझे लगता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, हमारे बॉर्न एंड बॉट अप में हमें शिक्षा ही गलत दी गई है। हमारी खुशी के लिए हमारा पार्टनर जिम्मेदार नहीं है। मुझे अगर खुश रहना है तो मैं ये नहीं कह सकती मेरा पार्टनर मुझे खुश रखेगा। सबसे पहले ये चीज, पति हो या पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, ये बदलनी होगी सोच। मुझे ये गलती मैंने बहुत करी है, बहुत मेरी करी। जिंदगी की खुशी मेरे पार्टनर के साथ जुड़ी है। मैं जिक्र करूंगी, मैं एक जगह एक वर्कशॉप के लिए गई थी, तो उनकी 50th मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड दे इनवाइटेड लॉट्स ऑफ पीपल। तो दे सेड कि हम आपसे एक वर्कशॉप कराना चाहते हैं कि आप कुछ बताएं रिलेशनशिप के बारे में। तो मैंने उनको बोला, शादी और प्यार, मैं प्यार, शादी, लिव इन तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर रखती हूँ। जैसे आपने बोला इनफिडेलिटी, जिसे चीट करना है वो प्यार को भी तोड़ेगा, वो लिव इन को भी तोड़ेगा और शादी को भी तोड़ेगा। तो मैंने वहाँ उन्हें बोला कि पार्टनर जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। तो जब पूरा खत्म हो गया प्रोग्राम, तो उन्होंने जाने से पहले, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी पर मैं गई थी, इनवाइटेड थी 50th, तो उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब मुझे ना आपकी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपने बोला शादी जिंदगी का हिस्सा है, मैं और मेरी पत्नी तो गुड़ और मक्खी की तरह है। आप मानेंगे नहीं, आई थिंक 2-3 years आफ्टर दैट ही लॉस्ट हर पार्टनर। आई थिंक सो, मे बी शायद 3-4 साल बाद ही कॉल्ड मी अप। ही सेड, जो आपने उस दिन मुझे बोला था ना, वो आज मैं समझ पाया। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं पार्टनर को जिंदगी का हिस्सा क्यों कह रही हूँ। जिंदगी तो चलती रहती है। जिंदगी चलना बंद नहीं हो सकती किसी भी हादसे के बाद, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो। जब मैं कभी आर्मी या एयरफोर्स में कभी लेक्चर के लिए जाती हूँ और वहाँ उनकी फैमिलीज के साथ मुझे डील करना पड़ता है, या हमारे जवानों के साथ डील करना, तो उन्हें बोलती हूँ, आपकी लाइफ में बहुत क्लियर है, पार्टनर जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। ये तो गॉड ने आपको करा के भेजा है ना, तो आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन सेट है ऑलरेडी। हाँ, क्योंकि पार्टनर अवेलेबल ही नहीं होता फिजिकली बहुत बार, तो आपको पता है उसके बिना भी जिंदगी चलानी है। यस। पर मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली इन हिंदुस्तान में, मैं जब भी किसी को बोलती हूँ पार्टनर जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है, तो वो बोलते नहीं, मेरा पति मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी पत्नी जिंदगी है, मेरे बच्चे मेरी जिंदगी। गलत है ये सब। आप सब अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। लाइफ आई वर्सेस वी है, सिर्फ आई नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट वर्सेस इंटरडिपेंडेंट। अगर आप बिल्कुल आई करेंगे तो वो जो आजकल नार्सिज्म बोलते हैं, सिर्फ अपने बारे में, आई वर्सेस वी है। मुझे भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी आपको मेरी जरूरत है। सो इट्स ए 2 वे। जैसे गाड़ी के 2 पहिए, एक में प्रॉब्लम है तो दूसरे में आएगी। पर अगर किसी के भी जाने से हमारी जिंदगी चलनी बंद हो रही है, तो वहां प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं, हम में है। देखिए, सेटबैक्स लाइफ में मिलते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, मिलते हैं। चाहे वो आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपके दोस्त हों, हर रिलेशनशिप में मिलते हैं सेटबैक्स। पर उसके बाद अगर आपकी जिंदगी चलनी बंद हो रही है और वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ पर, जिससे आपकी पूरी लाइफ इधर उधर बिखर रही है, अप डाउन हो रहा है, देन यू नीड टू चेक ऑन। इसके कोई रेड फ्लैग्स होते हैं कि मैं अर्ली इसको रिकॉग्नाइज कर पाऊं कि ये प्रॉब्लम है मुझ में? अगर किसी का मैसेज नहीं आया, आजकल की जनरेशन जो करती है, किसी का कॉल नहीं आया, तो पहला सवाल क्या आता है? नेगेटिव ही आता है ना। हाँ, वो तो श्योर। कभी ये नहीं सोचते नहीं। सामने वाला बिजी हो सकता है, उसका फोन में प्रॉब्लम हो सकता है, बैटरी चली गई होगी, या वो किसी ऐसे काम में हो सकता है या हो सकती है। हम नेगेटिव ही पहले ही सोचेंगे। हाँ, भूल गया, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, और लोग और इम्पोर्टेंट हैं, मैं तो कभी नहीं भूलती। और दूसरों को हम अपनी जिंदगी बना क्यों रहे हैं? मेरे पास काम है, काम नहीं तो हॉबी है, जो मेरा पैशन हो सकता है, तो मुझे उसमें भी टाइम लगाना है। मेरी जिंदगी में मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, कलीग्स हैं, सब है ना। और खुद मैं भी हूँ। मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे अपनी पर्सनल हेल्थ का ध्यान रखना है। इसमें तो पार्टनर है ही नहीं।
A lot of things are still existing without the partner. यस, वी डू नॉट थिंक. हम आजकल क्या ध्यान देते हैं? अपीयरेंस, मेकअप, बाहर से. डाइट, Yeah. जिम, एक्सरसाइज, बस यही है हमारी. अधिकतर किसी से पूछो आप अपने के लिए क्या करते हो, आपके पास हॉबीज है? नहीं है टाइम लोगों पास हॉबीज में इंडल्ज करने का, नहीं देना चाहते वक्त. क्रिएटिविटी में जितनी एनर्जी नेविगेट होती है ना, और फिजिकल वर्कआउट में कहीं नहीं होती है. फ्लो बनता है. आप अपने पेन को पोएट्री में डाल सकते हो, अपनी इमोशंस को स्टोरी राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी इमोशंस को म्यूजिक में प्ले कर सकते हो. इट्स अप टू यू ना. हैप्पीनेस तो आपके अंदर ही फ्लो कर रही है. मेरा एक और रिसर्च पेपर हुआ है, जब पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं होता तो भी आप खुश रह सकते हो, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस में पार्टनर का रोल 1 या 2% है. इतना कम? यस. ये तो सरप्राइजिंग है. 10% सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल है हमारी हैप्पीनेस के. सर्कमस्टांसेस. पार्टनर है? नहीं है. माँ बाप है? नहीं है. बच्चे हैं? नहीं है. पैसा है? नहीं है. गर्मी है, सर्दी है, मेरी तबीयत ठीक है? नहीं है. ये सब जॉब है? नहीं है. राइट. मैं गोरा हूं, काला हूं, छोटा हूं, लंबा हूं, नाटा हूं, ऑल अंडर सर्कमस्टांसेस. तो फिर मेजॉरिटी 50% set point, which is genetics, through genes from our parents. Oh my God. जब लाइफ में कोई भी सेटबैक आता है और हम उससे बाउंस बैक हो पाते हैं, वो हमारे सेट पॉइंट की वजह से. इस पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है. जेनेटिक्स, दैट्स व्हाई आई सेड इट. अगर मान लीजिए मैं 4 दिन उदास हूँ, 2 दिन उदास हूँ, उसके बाद तीसरे दिन यार ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी, तो हो सकता है ये जीन्स, जेनेटिक्स मुझे मिले हैं मेरे माँ बाप से, मम्मी या पापा या दोनों से. आप देखिएगा, अगर एक इंसान ज्यादा क्रिप कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, देखिएगा कहीं हो सकता है माँ बाप में ऐसा कोई पैटर्न होगा. मम्मी को कंप्लेन करने का आदत होगा, पापा को सेल करने का आदत होगा. इट मे बी. इसको रियलाइज करना तो बड़ा मुश्किल है, और क्योंकि इंसान ब्लेम करता चला जाता है, खुद में तो झांकता ही नहीं है. और 40% इंटेंशनल एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस. Oh, wow. इंटेंशनल. सो दैट इज इन योर कंट्रोल. अगर मान लीजिए मेरा दिल टूट गया, अब मैं गाना सुन रही हूँ, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, राइट? तो ऑब्वियस है ना. तो इंटेंशनली तो मैं अपने आप को सैडनेस को बुलावा दे रही हूँ. मुझे सैडनेस के साथ 30 मिनट स्पेंड करना है. मैं कहती हूँ अगर ब्रेकअप हो गया है, जिंदगी में कुछ भी बुरा हुआ है, दिन में आधा घंटा रोज डेडिकेटेड टाइम देके रो लो. बट 23 hours 30 minutes यू हैव टू लिव लाइफ. मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, उस टायर पंचर के लिए मैं 1 मिनट रहूं, 5 मिनट रहूं, 10 मिनट रहूं, 10 घंटे रहूं, 10 दिन रहूं, तो पंचर ही रहेगा. नथिंग इज गोइंग टू चेंज. यू हैव टू डिसाइड. 10 साल तक आप रोइए, अगर कोई चला गया है, आपके आंसू उस इंसान को जिंदा नहीं ला पाएंगे. और भगवान ने हमें आंखें, दिमाग, सब कुछ दिया है. जस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल जो डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, फिजिकल, मेंटल, वो भी जिंदगी जीना नहीं छोड़ते. तो हम किसी इंसान की वजह से, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, दोस्त हो, माँ बाप हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पार्टनर हो, उसकी वजह से जिंदगी जीना कैसे छोड़ सकते हैं, या बच्चे हो. आई एम राइट? जब मुझे लगता है, जब भी मैं लाइफ में कभी सोचती हूँ, I have to sit down, मैं थक गई, I would say I would love to read motivational stories. मैं सुबह एक गेम खेलती हूँ मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग. पैटर्न है आपका? हाँ, पैटर्न है, खेलते ही आप? हाँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. तो मैं जहाँ गेम खेलने जाती थी, तो आई सॉ समवन व्हाइल टेनिस. हाँ, मैं लॉन टेनिस खेलती हूँ. वाओ. तो अभी कुछ महीनों से शुरू किया है. तो मैंने सुबह देखा स्कूल में पैरा ओलंपिक्स, वहाँ पर एक लेडी व्हील चेयर पर ग्राउंड में घूम रही थी, व्हील चेयर लेकर, फुटबॉल की ग्राउंड में. सो आई वाज सो इंस्पायर्ड. आई वाज फीलिंग बैड फॉर समथिंग. I just saw her bring a smile on face and she waved herself because she noticed I'm seeing her. Wow. तो it's a sort of inspiration ना. अगर एक पेड़ के पत्ते मुरझाते हैं तो फिर भी तो आते हैं ना. मौसम बदलता है. Am I right? वो गाना है ना, पतझड़, सावन, बसंत, बहार. तो सारे मौसम आते हैं जिंदगी में. तो बुरे मौसम को भी एक्सेप्ट करें. और ऐसा तो कभी हुआ नहीं, अंधेरों ने कभी सुबह ना होने दी हो.
तो वो होप नहीं बस बुझने देनी है, और वो होप कहाँ तक नहीं बुझने देनी है, वो रेड सिग्नल का पार्ट है। जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये पैटर्न रिपीटेड हो रहा है, अगर कोई बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता जा रहा है, अब आप उसको बता भी रहे हो, आपको महसूस भी हो रहा है, देन यू हैव टू समवेयर, दैट्स अ रेड साइन, रेड फ्लैग। किस पॉइंट पे एक बंदा ट्राई करना बंद कर सकता है कि बस हो गया, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, ये इंसान नहीं बदलने वाला है? व्हेन डू यू गेट दैट कोई रियलाइजेशन? बदलता है? मुझे सवाल करना है पहले। हाँ, मैं मानती हूँ बदलते हैं लोग। हम बदलते हैं जब हम बदलना चाहते हैं, आई एग्री। बट यस। फितरत नहीं बदलती, ओके। फितरत नहीं बदलती। इमली अगर खट्टी है तो जितना मर्जी मीठा डाल लीजिए, इमली आपको आम का टेस्ट नहीं देगी, वो खट्टी है, खट्टी ही रहेगी। आप ये मानते हैं कि इंसान नहीं बदलते? इंसान तब बदलते हैं जब वो बदलना चाहते हैं, और एक हद तक बदलते हैं, क्योंकि आपका टेम्परामेंट को आप कैसे चेंज कर सकते हो? यू आर ऑफ ए डिफरेंट टेम्परामेंट, अदर पर्सन इज ऑफ ए डिफरेंट टेम्परामेंट। यस। यस। सो टेम्परामेंट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अवर पर्सनैलिटी। नहीं, ये बात मैं रिलेट कर पा रही हूँ। आई एग्री। माई थीसिस ऑन ह्यूमन टेम्परामेंट। तो अगर हम टेम्परामेंट को जाएंगे, आप चाहते हो, लोग 15-20 साल तक नहीं बदलते, अपनी आदतों को नहीं बदलते, वो तब बदलते हैं जब उनको पता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, राइट। नदी भी अपना रास्ता तब बदलती है जब उसे पता है वो पहाड़ को तोड़ नहीं पा रही, पानी का तेज बहाव भी, तो वो भी अपनी दिशा बदलती है। यस। यस। Am I right? यस। तो हर रूल हर जगह लागू नहीं होता, और जो जिसे बदलना है, आपने उसे पॉइंट आउट किया, उसके नेचर में, उसके स्वभाव में, उसकी आदतों में आपको दिख जाएगा ना। आई ऑलवेज सी, सब लोग मुझे बोलते हैं काउंसलिंग से फर्क पड़ता है, मैं बोलूंगी आपके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर बर्ताव में चेंज आ रहा और चेंज परमानेंट है तो बदल रहा है इंसान। अगर नहीं बदल रहा तो उसकी चॉइस है, या वो उस साइकिल में इतना इन्वॉल्व है, वो कर ही नहीं पा रहा, या कर सकता ही नहीं। देखिए, एक समय तक ना आप रबड़ को खींच सकते हो, तो आप अपने टेम्परामेंट को भी एक समय तक ढाल सकते हो। उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है ना, तो शायद आपके टेम्परामेंट का हिस्सा ही नहीं है। तब हमें एक्सेप्ट करना होगा ना कि माइक्रोवेव में स्टील लगाने से अधिकतर आग लग जाती है, और कांच की अपनी वैल्यू है और स्टील की अपनी, या आयरन की अपनी। हम कंपैरिजन में ना ही आए तो अच्छा है। तो रेड फ्लैग्स हर चीज के लिए अलग हो सकते हैं। कांच को जंग नहीं लगता, लोहे को लगता है, लोहा अपने ही जंग से खराब हो जाता है। राइट। तो कंपटीशन में ना आकर, वही कह रही हूँ, हम खुद को खुद ही जाने। तो कहते हैं ना, हमारी जो जर्नी होती है वो खुद से खुद तक ही होती है। आपने खुद को समझ लिया ना, तो बस सबसे वो अपने स्वर्ग भी आपके अंदर है, नर्क भी आपके अंदर है, इंसानियत भी आपके अंदर है। बिल्कुल मानती हूँ इस बात को। तो राम भी आपके अंदर है, रावण भी आपके अंदर है। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, इंटेंशनल चॉइस। यस। आप क्या करना चाहते हो, और अगर आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे तो फिर हमारे जैसे साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के पास जाइए। एंड दैट हेल्प्स। आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स रिजॉल्विंग थिंग्स। देखिए, मोस्टली ना रेजिस्टेंस के चक्कर में हम जाते नहीं है। अभी भी टैबू है, ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है, और हमें काउंसलिंग चल रही है। और दूसरा, हमें ये भी लगता है मैरिज काउंसलर क्या कर लेते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर क्या कर लेंगे। मतलब अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ किसी एडवोकेट ने कॉल किया, उसने बोला मैडम एडवोकेट हैं हम तो रोज ही काउंसलिंग करते हैं। आई वाज थिंकिंग दैट आई थिंक आई एम वेस्टिंग माय 23 years बाय स्टडिंग दिस एंड डूइंग वर्क, एंड टिल टुडे आई एम स्टडिंग। हम हर रोज पढ़ते हैं कुछ ना कुछ नया, हमें कोई बताता है यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, लेट्स लर्न दिस। तो मतलब लर्निंग तो वैसे सारी जिंदगी चलती है, बट वो काउंसलिंग जो हम एज ए थेरेपिस्ट करते हैं या साइकोलॉजिस्ट करते हैं, वो आपके दोस्त और भाई बहन नहीं कर सकते। अब ये जो मैं रिसर्च पेपर्स की आपसे बात कर रही हूँ, कितने लोगों को ये पता है, कितने कपल्स को ये पता है, चाहे वो यंगस्टर हो या ओल्ड एज हो, जिसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। कितने आप ऐसे, आप अपनी मदर से पूछिए, क्या उनको पता है? वो जनरली शायद कहते होंगे हाँ हाँ पापा जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है ना, ऐसे ही है पापा। मीन्स उन्होंने पापा को शायद जिंदगी का हिस्सा बना रखा है, जिंदगी नहीं बना रखा, तभी वो अपनी हॉबीज पर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं। वो बहुत सही है, गलत नहीं है। आई थिंक मेरे साथ शायद यही प्रॉब्लम हुई
व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरी मॉम का नेचर है बहुत ज़्यादा पापा के अराउंड ही उनकी लाइफ घूमती है, लाइक सबकी मम्मी 100%। ऐसी ही होती है। उस ज़माने में और ज़्यादा होता था शायद। और मेरा भाई कोई है नहीं, तो मैंने सच में नहीं सीखा। अब जब मेरी शादी हुई, मुझे यही समझ नहीं आता था कि मैं अपने हस्बैंड को कितना इन्वॉल्व करूं अपनी लाइफ में। मुझे हर वक्त मुझे गिल्ट आने लग गई फॉर नो रीज़न। अगर मैं 2 घंटे अकेले बैठ के काम करी तो मुझे लग रहा है अरे यार, मैं 2 घंटे से पूछा नहीं है उसे क्या कर रहा है, वो कहीं मिस तो नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रही कि 2 घंटे अगर मैं उसके पास नहीं गई हूँ तो वो भी तो नहीं आया है मेरे पास। हम साथ में ही काम करते हैं, एक ही घर में रह के। मेरे अंदर अननेसेसरी गिल्ट बहुत ज़्यादा पाइल ऑन होने लग गई थी। एंड रिसेंटली मैंने, अब हमारी शादी को 4 साढ़े 4 साल हुए हैं, अब मुझे लगता है मैंने समझना शुरू किया इन चीज़ों को कि मेरी अपनी एक लाइफ है, गिल्ट का कोई मतलब नहीं बनता, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। मेरी लर्निंग ही मेरी मॉम से आ रही थी, नोइंगली अननोइंगली, या आपको शायद पता भी नहीं होगा, कभी रियलाइजेशन ही नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी मॉम का वही है, उनकी खुद की, आई डोंट थिंक वो जिंदगी का हिस्सा वाली चीज नहीं है। मोस्टली पुरानी सब मदर्स ऐसी ही होती थी, वो सेक्रीफाइस ही करती थी। और आपको पता है, हम एज ए साइकोलॉजिस्ट सेल्फ सेक्रीफाइसिंग को टॉक्सिक ट्रेट मानते हैं, चाहे वो मेरी मदर हो, चाहे वो आपकी मदर हो, या मेरे किसी दोस्त की माँ हो। और शोज में कैसे हीरोइन हमेशा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होती है, वही पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं। कितना इन्होंने गलत कंडीशनिंग करी है ना That's हमारी। what I'm saying, ना हम किससे प्रभावित हो रहे हैं। मैम, एक टाइम पर, बुरा मत मानिए, सती प्रथा को वैलिड माना जाता था, बाल विवाह को वैलिड माना जाता था। यस, Am I right? यस, आज की और जौहर, जिस पर मूवी भी बनी है, उसको भी वैलिड माना जाता था। पर आज जमाना बदल गया है ना, तो हम क्यों नहीं बदल रहे अब? ये भी हमें पुरानी इन सोच, जो रूढ़िवादी सोच है, उनसे निकलना होगा ना। जिस तरह मेल की पसंद और नापसंद है, उनको भी नहीं पूछा जाता। अगर आप बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, तुम बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? क्योंकि तुम इस परिवार में पैदा हुए हो, तो ये तो हमारे परिवार की परंपरा है और तुम्हें यही करना है। पूछते नहीं है। पूछते नहीं है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपके फादर उसके फाउंडिंग मेंबर हैं या दादा फाउंडिंग मेंबर है, तो आपको कॉन्टिन्यूसली उनके अंडर काम करना होगा। आजकल की जनरेशन के लिए तो ये बहुत ट्रबलसम पुरानी है। जनरेशन के लिए भी ट्रबलसम था, बट वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं बोलते थे और दबते चले जाते थे, तो वो सप्रेसिंग इमोशंस झगड़ों का कारण और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती थी। वो घर में निकलती थी फिर वो चीज। आप देखिए ना, बहुत सारे पुराने टाइम के अगर घर देखे, बिजनेस क्लास फैमिलीज देखे, इवन सर्विस क्लास ऑल्सो, मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मेरा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। हमारे घर का रीति रिवाज है। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी डॉक्टर होना चाहिए, वाइस वर्सा। मतलब वंश चलाने का तरीका। तो मेल पर भी उतना ही प्रेशर है जितना फीमेल्स पर होता था। इसीलिए उनका अग्रेशन एंगर के रूप में निकलता है, क्योंकि वो सप्रेस्ड है। हमें बोलना तो आता नहीं ना, हम क्या करना चाहते हैं। वो कहीं से सप्रेस हो रहे हैं तो किसी को सप्रेस कर रहे हैं आगे। और दूसरा, आप सप्रेस कर क्यों रहे हो ना? आपको भी तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है ना। मैं ये बोलती हूँ, अगर मैं खुलकर बात नहीं बोल पा रही तो वो मेरी भी तो प्रॉब्लम है ना। तो मुझे भी तो वो स्किल सेट सीखना है ना, जिससे मैं खुलकर अपने दिल की बात बोल पाऊँ। हो सकता है मुझे डोमिनेंट फिगर से प्रॉब्लम, वो भी मेरे चाइल्डहुड का हिस्सा हो सकता है। मैंने कहीं एक चीज पढ़ी थी, बड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए, बट जब मैंने पढ़ी तो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया और मुझे वो सही लगने लग गई। मैंने पढ़ा ये था, देयर इज अ बुक, गेम्स पीपल प्ले करके है, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ी है लाइब्रेरी में सामने। उसमें कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था कि कई बार हम कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं अपनी रिलेशनशिप्स में, जिसमें हमें लग रहा होता है कि हम सफर कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम उस सफरिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं। हम इसीलिए उससे निकलना ही नहीं चाहते, हम एक्टिव एफर्ट मारते ही नहीं है। हमको वो रोना, आंसू बहना, कहीं ना कहीं शायद कंफर्ट मिल रहा होता है उसमें। आई रेड दिस, समथिंग सिमिलर टू दिस, एंड मुझे लगता है सच है क्या ये? कई बार ना लर्न हेल्पलेसनेस होती है। ओ या हाँ, होती है। कई बार हम मान लेते हैं यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी डेस्टिनी है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है इस बात का, और उसमें कंफर्ट मिलने लगता है। हम महसूस करने लगते हैं ना, यही मेरी कंफर्ट जोन है, क्योंकि सदियों से, सालों से ये ऐसा ही है, ये तो इनकी आदत है। और या आपने उस आदत को, इग्नोरेंट को हिस्सा मान लिया ना, एक्सेप्ट कर लिया उसे। एक्सेप्ट कर लिया। तो आप ये भी तो एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं जीना है। हाँ, बट आप वॉइस आउट तो करो ना सामने वाले को, मुझे ऐसे नहीं जीना है। अगर तुम ये नहीं कर सकते या कर सकते,
तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। और पुराने जमाने में तो आगे नहीं चल पाएंगे वाला तो कोर्स होता ही नहीं था ना। हाँ, वो ऑप्शन यही- नहीं था। बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो शादी जिंदगी भर का साथ होता था ना, रिश्ते जिंदगी भर का साथ होता था ना। आपको दिख रहा है डिवोर्सेस बढ़ रही हैं? डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, हाँ मैं मानती हूँ, बट हम टॉक्सिक मैरिजेस में भी तो है ना, हम उनको क्यों नहीं एड्रेस कर? ट्रू, अनदर डिवोर्सेस पर्सपेक्टिव। की बजाय हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को एड्रेस करें ना। पहले लोग सह लेते थे, अब सहते नहीं है। नहीं, सहने की क्षमता तो सबकी कम हो गई है, बट अंडरस्टैंडिंग जैसे जितनी ज्यादा थी, पर उसमें कई बार अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा थी। वो जो आपने बोला ना, कहाँ बंद करना है मुझे, कि अब ये लिमिट हो गया है, वो तय करना जो है वो बहुत जरूरी है। और वो तो आप ही तय करेंगे ना। आई वुड से अभी कुछ दिन पहले एक यंगस्टर थी आपकी तरह, मतलब आपसे, मतलब आई थिंक सो 17 years old girl. She called me up, मतलब parents said कि she wants to take a session with you. And she's my old client. 17 साल की बच्ची। ओल्ड क्लाइंट है वो मेरी। तो उसने मुझे कॉल किया। She said, I want to confess you something. I said, क्या हुआ? कहती मैंने अपने ना एक्स बॉयफ्रेंड से बात किया। ये कन्फेशन था उसका। हाँ, वो क्यों था कन्फेशन? कहती मुझे आपको बताना था, बिकॉज आपने मुझे कहा था तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जो इंसान तुम्हें इतना बुरा बोल रहा है और बोलता जा रहा है, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारा सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। और मैंने उसे बोला कि नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी, और इस बात का सबसे बुरा मेरे थेरेपिस्ट को लगेगा, बिकॉज यू गेव मी द कॉन्फिडेंस कि मैं उसके बिना भी कुछ हूं। वो मेरी जिंदगी नहीं है, जिंदगी का हिस्सा है। आई थिंक सो इट वॉज वेरी वैलिड। इट इज नॉट वॉट आई सेड टू हर, और उसको भी ये रियलाइज होना जरूरी है ना। मैंने तो उसे थॉट दिया, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? सेड नो है। मैंने कहा अगर बार बार किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो, और वो कह रहा है मुझे बात नहीं करनी है, मुझे तुम्हारी सूरत नहीं देखनी है, तो क्या फायदा? तो जो आपने बोला, रिश्तों में गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। अगर सामने वाला बार बार आपको इस बात का एहसास दिला रहा है कि आप उसके लिए कुछ नहीं हो, आपके बिना वो आराम से जिंदगी जी सकता है या जी सकती है, तो फिर तो आप ही बेवकूफी कर रहे हैं ना। जब वी मेट की गीत याद आ गई मुझे। हाँ, ये सिर्फ गीत नहीं है ना, ये मेल के साथ भी होता है, फीमेल के साथ भी होता है। दोनों के लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। पर आजकल तो अलग भी जमाना है ना, आजकल की जेनजीज का स्टॉकर्स भी बहुत होते हैं। हाँ, सुना है ऐसा। और आजकल जो सोशल मीडिया है उसमें तो हम एक्सेस को फॉलो भी करते हैं, वो तो मेरे दोस्त बन जाते हैं। वो भी एक जमाना है। मैं आपसे ना, मेरे 2 सवाल हैं जो मुझे पूछने हैं बिफोर यू गो। ओके। पहला सवाल एक तो ये है, I genuinely want to know what you think about this because you're trained to think and talk about these subjects. आज के ज़माने में देखिए, पहले क्या होता था, शादी होती थी और लड़की लड़के के घर जाती थी रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि लड़कियां नहीं कमाती थी, लड़का ही ब्रेड विनर था। तो अंडरस्टूड है कि लड़की अपना कंफर्ट जोन छोड़ के किसी और के घर में जाके रह रही है, जो पर्सनली मुझे लगता बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। तो अब आज के ज़माने में भी what do you think about this? Should this stop? How to deal with this? अगर कोई इंसान, क्योंकि लड़कियां आजकल नहीं रहना चाहती, मैं बता रही हूँ आपको, I've heard my friends talk about these things. लड़कियां आज की डेट में नहीं जाना चाहती अपने कंफर्ट जोन से बाहर, नहीं रहना चाहती लड़के के घर वालों के साथ। लोग बुरे नहीं है, मैं ये नहीं कह रही लोग बुरे होते हैं, मैं बस ये कह रही हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप उस एज में पहुंच चुके हो कि जहां बहुत सेल्फ अवेयर हो आप, मतलब आपको आपका फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप चाहते हो मैं जिस तरह चाहूँ घर में घूमूं, जो चाहूँ करूँ, मुझे कोई देखे ना, कोई ऑब्जर्व ना करे। ऐसे में आपका क्या स्टांस है? क्या ये फेयर है? इज इट फेयर? दैट्स माय क्वेश्चन। इट इज नॉट अबाउट फेयर। मैंने वही कहा, हर तरह के लोग हैं। आपका फ्रीडम पसंद है, पार्टनर के साथ डिस्कस करिए, तो एक अलग घर में तो रह सकते हैं ना, जो घर आपका और उनका दोनों का हो। और क्यों हम ये बात करते हैं कि औरत को कमाना नहीं है? हर औरत को काम करना चाहिए। बिल्कुल, मैं मानती हूँ। आई वुड से छोटे से छोटा काम करो, कुछ तो करो, सेल्फ वर्थ के लिए, सेल्फ वर्थ के लिए करो।
अपनी कुछ नहीं तो हॉबी के लिए करो, जरूरी नहीं इनकम आना जरूरी है, पर आपको लगे तो सही आप वर्थ इट हो। चाहे वो किसी एनजीओ में जाके बच्चों को पढ़ाना ही क्यों ना हो, चाहे किसी को डांस सिखाना ही क्यों ना हो, क्या चाहे अपनी मेड के बच्चों को पढ़ाना ही क्यों ना हो, कुछ करिए जिससे आपको अपनी वर्थ इट लगे, ताकि घर में अगर सामने वाला आपको ये बोले तुम किसी लायक नहीं हो, तो कम से कम उसे बोले आई नो माई वर्थ। और वर्थ सिर्फ पैसों से नहीं होती। आई एम सॉरी, मैं मानती हूँ हम एक दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पैसों से वर्थ है, बट पैसों से भी सिर्फ वर्थ नहीं होती ना, नहीं होती। अगर पैसों से वर्थ हो तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोस्टिट्यूशन से कमा रहे हैं, तो उनकी इज्जत क्यों नहीं होती फिर? हाँ, I'm sorry. कमा तो वो भी रहे। कमा तो वो भी रहे ना, am I right? जो Yes. ब्राइब से कमा रहे हैं वो भी तो कमा ही रहे हैं ना, उनकी इज्जत क्यों नहीं कर रहे? हम साथ में बोल देते हैं ना, ये ब्राइब से कमा रहा है, ये इसको बॉयफ्रेंड ने दिया, इसको बॉस ने दिया गिफ्ट। आई एम रियली सॉरी। तो रिस्पेक्ट जो है वो तो आप अपने कर्मों से लाओगे ना। कर्म मीन्स व्हाट एक्शंस यू आर डूइंग, एंड दैट शुड बी रिस्पेक्टेबल, वेदर इट इज अ मेल और ए फीमेल। कांट थिंक कि भी मेरा पार्टनर कमा रहा है तो मैं उसकी मनी पर रिलाई करूं। कुछ भी करे, वर्थ इट तो करिए। इतने कई फिल्म स्टार्स हैं जिनके पार्टनर्स बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, तब भी वो कर रहे हैं ना। हाँ, काम कर रहे हैं, काम कर एक्टिवली। रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इट्स अबाउट यू हैव सम टैलेंट और यू थिंक यू आर डूइंग समथिंग, यू कैन डू। हम जहां वो मनी से कोरिलेट सब कुछ कर देते हैं, या सक्सेस के क्राइटेरिया में, जैसे आपके इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में आपके फॉलोअर्स है, हमारे नहीं है, तो हम सक्सेसफुल नहीं माने जाते। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। But this is like I remember one of my clients said it to me. आपके क्या 10 लाख फॉलोअर्स है जो मैं आपकी बात मानूं? मैं तो सदगुरु की बात मानूंगा। तो फिर आपके पास क्यों आया वो, या आई है वो? No, that was a condition from the office side. Till the moment you will not go through the counseling process, you can't proceed further. तो कई बार काउंसलिंग के लिए इवन फैमिली भी फोर्स करती है, पार्टनर भी फोर्स करता है, लोग इसलिए आते हैं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहूंगी, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपका पार्टनर नहीं जाना चाहता ना, आप जाइए, अकेले जाइए, खुद के लिए जाइए। रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो और जरूरी है, फिर तो और जाइए। अगर अपने आप के लिए आप जरूरी हैं तो भी जाइए। कई बार ऐसा मैंने देखा है रिश्तों में, जब एक पार्टनर आता है वो अपने आप पर काम करता है, दूसरा भी आ जाना शुरू कर देता है। हेल्प करती है ना काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग? देखिए, हेल्प करती है, आप हेल्प लेने को तैयार है, आप अपने आप पर काम करने को तैयार है, हाँ, तो डेफिनेटली इनिशियल अगर आप रेजिस्टेंस से भी आते हैं, टाइम लगता है, बट ब्रेक आपको ही करना है। और अगर आप काम करते हैं तो रिजल्ट तो आता ही है। मैक्सिमम केसेस में रिजल्ट्स आपने देखे हैं पॉजिटिव? रिजल्ट्स आते हैं। देखिए, टीचर सबको पढ़ाता है क्लास में जी, am I right? सबको वही पढ़ाई कराता है। अब बच्चे की कैपेबिलिटी पर भी है, कैपेसिटी पर भी है, और उसकी इंटेंशन पर भी है। अगर कोई सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आया तो हमें वो भी पता चल जाता है। और कई बार तो हम सेशंस के बाद बोल देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल भी बदलोगे नहीं। उसका रीजन भी ये है, शायद ये आपका एक्सेसिव पॉइंट है और यही आपका टेम्परामेंट है। Another thing I want to know is, I think a lot of people are delaying to have kids. What is your stance on that? Again? मतलब if one partner wants it and another partner doesn't want it, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो पर्सनल चॉइस है, दूसरा म्यूचुअल कंसेंट में तो आना पड़ेगा। अगर हम बायोलॉजिकल नीड्स की बात करें कि बायोलॉजिकली एक एज क्या है बॉडी के लिए, वो आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बता सकते हैं। आपको लगता है एग फ्रीजन करा के इसको सॉल्व किया जा सकता है, दैट्स फाइन। आपको लगता है सैरोगेसी से सॉल्व किया जा सकता है, दैट्स फाइन। बट अगेन इट इज़ द म्यूचुअल कंसेंट जॉब। अगर नहीं करना चाहते कपल्स, मत करें। अगर करना चाहते हैं तो आपको सामने वाले की भी इंटेंशन को ध्यान में रखना होगा और अपनी भी। आप डिले कर रहे हो तो क्यों डिले कर रहे हैं? इज इट एनवायरमेंटल इश्यूज? इज इट योर पर्सनल सम पास्ट ट्रॉमास? Is it you think that there is something lacking in relationship? That's why you are delaying it? Is it you think you are not capable of being a mother or a father? Or you think it is an extra responsibility for you or a adding responsibility? So वो भी, उसके आंसर्स भी सब आपके पास है। SWOT एनालिसिस करिए, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए ऑप्टिमिज्म भी होना जरूरी है, पर रियलिस्टिक। आप क्या चाहते हैं
वो भी जानना और उसको समझना और मानना भी जरूरी है। फिर आप कितने इंटरेस्टली मोटिवेटेड हो उस चीज को करने में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर क्लाइंट का कपल है, उसमें जो फीमेल थी वो बच्चे पैदा ही नहीं करना चाह रही थी इतनी जल्दी, पर उनके हस्बैंड ने बोला हम जल्दी कर लेंगे एक के बाद एक, तो तुम ईजी हो जाओगी। बट वो पहले 7 से 10 साल उस लेडी के लिए बहुत डिफिकल्ट थे, क्योंकि पर्सन वर्कहोलिक था, वो तो काम पे चला जाता था। हाँ. और ये जो फीमेल थी वो परफेक्शनिस्ट है। अब परफेक्शनिस्ट और वो वर्कहोलिक, वो इमोशनली अवेलेबल है। हाँ. और ये परफेक्शनिस्ट है, तो इसको हर चीज परफेक्शन में चाहिए। हाँ. बच्चे कितनी क्वांटिटी में खाएंगे, क्या खाएंगे, स्कूल कब जाएंगे, कौन सी क्लास करेंगे, तो इट्स अ हेडेक फॉर हर। एंड शी वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू हैव किड्स। सो आप किस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर, चाहे वो बच्चे होना हो या शादी करना हो, हाँ. वो आपकी अपनी फाइट है, उसमें पार्टनर का रोल नहीं है। और वो सवाल का जवाब आप ही के साथ है, क्यों डिले करना है, इज इट ए वैलिड रीजन। सबके लिए उनके रीजंस वैलिड ही होते हैं। कौन कहेगा मेरा रीजन इनवैलिड है? किसी को भी ये पर नहीं जब हम लगेगा। ओवरऑल पिक्चर देखते हैं ऐसा नहीं होता है, हमें पता होता है ना हम सही हैं कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जैसे इनफिडेलिटी में भी लोगों को पता होता है ना, मॉरली, सोशली, लीगली, इमोशनली, ऑन पैरामीटर्स पर ये होंगी। कहाँ से राइट है? हम राइट और रॉन्ग तो तब बोलते हैं ना, यार तेरा पार्टनर 10 साल से अवेलेबल नहीं है तुझे फिजिकली, तो हो गया। तुम्हारा पार्टनर इमोशनल अनअवेलेबल है, हो गया। पर अब आप फाइंड आउट करने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी अगर आप फिर वहीं पर हो, प्रॉब्लम तो वहां है ना। क्या आपको सच में लगता है ऐसा कि बच्चे जो हैं वो ओवरऑल लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाते हैं? सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। आई वुड से अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उससे डाइवर्जन के लिए आप बच्चे कर रहे हैं तो डेफिनेटली नहीं। बट अगर प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली एक इंसान आपकी जिंदगी में आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐड होगी। हाँ. राइट। और अपने आप में भी, जब स्पेशली फीमेल है वो मदर बनती, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, कई बार फादर बच्चा नहीं करना चाहता, वाइफ जिद पकड़ लेती है मुझे बच्चा करना है। अब शायद वो पति जिससे बच्ची को या बच्चे को दुनिया में लाना नहीं चाहता था, वो उससे ज्यादा प्यार करता है। ऐसे देखा आपने? ऐसा भी देखा है मैंने। वो कनेक्शन बच्चे, बेटी या बेटे के साथ ज्यादा है, माँ के साथ उतना स्ट्रांग नहीं है। उल्टा हो गया। हाँ, होता है। जो चाहता नहीं था उसका कनेक्शन, जैसे मैंने इस पर्टिकुलर केस में बात कर रही थी कि वो हस्बैंड चाह रहा था बच्चे जल्दी जल्दी कर ले। अब वो जितना कनेक्शन माँ का है बच्चों के साथ, बाप का नहीं है। बाप का है, मतलब उतना रोल है जितना होना चाहिए। पर मदर तो ओवर इन्वॉल्व मदर बन गई ना। हाँ, उसकी लाइफ ही उनके अराउंड घूमने और लग गई। जब मैं फिर हिस्ट्री में जाती हूँ तो पता चलता है शी इज अ केस ऑफ मॉलेस्टिंग, शी वाज मोलेस्टेड एज अ चाइल्ड, सो शी बिकेम अ ओवर इन्वॉल्व मदर। Yeah, I get it. So again, when the men confidence isn't shaken, it may be शायद उसकी हिस्ट्री में बुलिंग हो, सेक्सुअल अब्यूज हो। अगेन दोनों तरफ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेन ज्यादा गलती करते हैं या वुमेन ज्यादा गलती करती है, मेन अच्छे होते हैं वुमेन अच्छे होते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, दोनों अच्छे हैं अपनी जगह। किसी केस में वाइफ अच्छी होती है, किसी चीज में हस्बैंड अच्छा होता है। भगवान ने सब जोड़ियां बना रखी ना, कोई ज्यादा एडजस्ट करता है, कोई कम एडजस्ट करता है। बट ऐसा नहीं सिर्फ एक ही तरफ से नहीं होता है कॉम्प्रोमाइज, दोनों तरफ से करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास आपके लिए, जो आज की दुनिया को बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। आई एम ऑब्जर्विंग अ पैटर्न एंड आई एम श्योर आपको भी आइडिया होगा इसका, सबको आइडिया है। सो आई डोंट नो अभी खुल के ज़्यादा डिस्कस हो रहा है या ज़्यादा इजीली दिख रहा है, पहले भी ऐसे एग्जिस्ट करता था या आप सच में बढ़ गया है। टिंडर और इन सब चीज़ों का ज़माना है, राइट? एंड एट द सेम टाइम एक सर्टन एज पे पहुंचने के बाद पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर रियल पार्टनर्स जिनके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें हैप्पीली। वो उनके अंदर अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ ढूंढने लग जाते हैं। बट मुझे ऐसा दिखता है, अब आप प्लीज करेक्ट करना मुझे अगर मैं गलत बोल रही हूँ, रिलेशनशिप फिजिकल इंटिमेसी से स्टार्ट होती है और क्योंकि रिलेशनशिप उस स्टेप से ही स्टार्ट हो रही है तो बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज हो जाता है लोगों को एक दूसरे में, एंड सालों गुजरते चले जा रहे हैं, लोगों को पार्टनर मिल ही नहीं पा रहा है। आई एग्री ऑन दिस। डेटिंग साइट से जो रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं और जो आपने बोला फिजिकल इंटीमेसी से जो रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं, आई डो नॉट नो कितने लोग जानते हैं मॉस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की। हाँ, मैंने सुना है, मैं भूल गई हूँ। हाँ, तो
ये बड़ी बेसिक चीज बात कर रही हूँ मैं। याद आ गया। अगर आप गूगल पर डालेंगे मॉस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की, तो पिरामिड टाइप का होता है ना, एक हाँ triangle। पिरामिड टाइप का होता है, उसमें लोएस्ट लेवल की नीड्स होती हैं, उसमें आता है सेक्स सबसे लोएस्ट। अच्छा, वही जो मैं कह रही थी कि मेरी रिलेशनशिप में मेरे हस्बैंड के साथ शायद मैं उस एस्पेक्ट को तीसरे चौथे नंबर पे रखूंगी। मेरे लिए फ्रेंडशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपैटिबिलिटी। वहां पर भी मैं आपको एक करेक्ट करूंगी अब थोड़ी देर बाद। ठीक है, मैं याद दिलाऊंगी आपको। तो रही बात, जो रिश्ते बेसिक नीड से शुरू होते हैं, बेसिक नीड्स हमारी 3 ही नीड्स हैं बेसिक। अगर देखा जाए, हम बोलते हैं 3 बेसिक ह्यूमन ड्राइव्स होती हैं, हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स, यानी कि हमारी फिजिकल नीड। ये 3 बेसिक नीड्स है हमारी। और अगर हम साइकोलॉजिकल वो पिरामिड जो आप बोल रहे हो, मॉस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की में जाएं, तो अगेन द बेसिक नीड्स आर अगेन होमियोस्टेसिस, फिजियोलॉजिकल नीड्स कम्स अंडर दैट। और अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें या जनरल लाइफ की बात करें, उसमें भी लोएस्ट लेवल ऑफ नीड्स, इवन आप जॉब भी करें, इवन आप किसी भी रिश्ते में हो, वो सिर्फ नीड बेस अगर रिश्ता है तो सबसे लोएस्ट लेवल का रिश्ता है। मनी से रिलेटेड रिश्ता सबसे लोएस्ट लेवल का रिश्ता, दैट्स द लोएस्ट लेवल। मतलब अगर एक इंसान सिर्फ पैसे के लिए नौकरी कर रहा है तो वो लोएस्ट लेवल ऑफ थॉट है। जैसे आपको ज्यादा पैसा कहीं मिलेगा तो आप चले जाओगे, और इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ समय बाद आप इंटरेस्ट लूज कर जाओगे। ट्रू। जब हम मॉस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की की बात करते हैं, उसमें भी सिक्योरिटी की नीड्स आती हैं। जब शादी होती है या रिश्ते में आते हैं तो मोस्टली वाइफ्स क्या कहती हैं, व्हाट इज माय सिक्योरिटी इन दिस रिलेशनशिप। कमिटमेंट की बात क्यों करते हैं, वो इमोशनल सिक्योरिटी भी है। फाइनेंसेस की बात क्यों करते हैं, उसमें भी सिक्योरिटी है, चाहे वो घर को लेकर सिक्योरिटी हो। उसके बाद बात आती है इंटीमेसी की, जो मुझे समझ में आ रहा है आप इंटीमेसी की बात कर रही थी। इंटीमेसी इज डिफरेंट देन फिजियोलॉजिकल नीड। आई डोंट नो वेयर टू ड्रॉ लाइन, बस मुझे ये पता है कि पीपल स्टार्ट देयर रिलेशनशिप विद सेक्स। So sex is physical need, which is the lowest level need. Okay. Am I right? Yes, it is. अगर आप सिर्फ मनी से रिलेटेड चीजें करेंगे तो वो लोएस्ट लेवल की हो गई। Yes. और अगर आप बॉडी से रिलेटेड चीजें भी करेंगे तो बेसिक लेवल की नीड होगी। करेक्ट, जो जिंदा रहने के लिए चाहिए, जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। उसके बाद जो इंटीमेसी की नीड है, उसमें आता है सिक्योरिटी, योर फैमिली, योर बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप। आपको लगता है आप पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है, वो इमोशनल कनेक्शन है आपका उसके साथ। फिजिकल नीड तो आप किसी के साथ पूरा कर लेंगे, बट अगर आप अपनी इमोशंस कनेक्ट कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होती है आगे मूव ऑन। बहुत मुश्किल है। ट्रू, राइट। और ये होता भी क्यों है, या तो अधिकतर हम फिजिकल नीड के तहत रिश्ता शुरू करते हैं या लव। आई एम सॉरी टू से, हिंदुस्तान में शादियां कैसे होती हैं, मैक्सिमम अरेंज मैरिजेस। हाँ, तो क्या होती है, शादी की उम्र हो गई, वो भी तो फिजिकल नीड है। हाँ, शादी की उम्र हुई, शादी कर लो, माँ बाप कह रहे हैं शादी कर लो, राइट। शादी की उम्र मतलब फिजियोलॉजिकल नीड। आप डेटिंग एप्स पर जा रहे हैं, फिजियोलॉजिकल नीड, राइट। या एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया, ये शादी हो गई तो प्यार हो गया। ये पैरामीटर ही उल्टा चलता है। और उसके बाद आती है थर्ड, अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पार्टनर। और उसमें भी हो सकता है प्यार हो, विश्वास ना हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट ना हो, प्यार हो, एप्रिसिएशन ना हो, प्यार हो, केयर ना हो। क्योंकि प्यार तो एक बेसिक नीड है ना, जिसके साथ हम पैदा होते हैं, राइट। हो सकता है आपके पेरेंट्स हमसे, हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते, हो सकता है विश्वास ना कर रहे हो। हाँ, हैपेंस ऑल द टाइम। बहुत नॉर्मल है। हाँ, दिखने को मिलता है ये चीज। हाँ, राइट। हो सकता है कोई हमसे प्यार करता, हमारी रिस्पेक्ट ना कर रहा हो। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो आप डेटिंग एप्स की बात करते हैं, हम शायद अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए जाते हैं वहां पर, और हमें लाइफ में लोनलीनेस भी चाहिए हो रहा होता है। हाँ। तो हमें लगता है हमें कोई मिल जाएगा, हमें कोई कंपेनियनशिप भी मिल जाएगी। तो वो भी एक रीजन है। तो अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स पर जा रहे हैं तो नीड पूरी हो गई। हो सकता है आज मेरी नीड बहुत ज्यादा हो सकती है, कुछ समय बाद वो नीड ही बिल्कुल इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि मुझे भी ये पता नहीं था कि वो मेरी नीड है कि नहीं है। या बहुत बार ऐसा होता है, जो आपने बोला, स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है, दे गो एंड दे न्यू दैट दिस इज जस्ट अ कैजुअल रिलेशनशिप। चाहे वो मेल है या फीमेल है, पर उसको डिफाइन भी तो आप ही कर रहे हो ना। आप क्या चाहते हो, आपको लग रहा है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को कोई सामने वाला पूरा कर सकता है, तो आप इन डेटिंग एप्स पर जाते हैं। आपको अटेंशन चाहिए
किसी से मिल नहीं रहा तो चलो डेटिंग ऐप्स पर चले जाते हैं, अटेंशन मिल जाएगा, नए नए लोगों से मिलना हो जाएगा। तो ये जो रियल रिलेशनशिप नहीं उभर के आ पा रही है, इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आज का पैटर्न ही यही है लोगों का, मेजॉरिटी केसेस में यही दिखता है। और मैं जज नहीं कर रही उनको, मैं बस कह रही हूँ कि मुझे ऐसा दिखता है कि ऐसा होता है। इसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि लोगों को लाइफ टाइम में एक रियल रिलेशनशिप तो चाहिए ना, जिसके साथ वो ग्रोइंग ओल्ड वाली बात होती है। लेकिन वो तो मेरे ख्याल से अधिकतर सबको चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल। बट हमें चाहिए क्या, ये समझने में सालों लग जाते हैं। मैंने क्या कहा, अगर मुझे शॉपिंग पर जाना और मुझे पता है क्या खरीदना है, मैं कितनी देर में शॉपिंग करूंगी? फटाफट। जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं सब कुछ ट्राई करूंगी। कुछ लोग करते हैं ना विंडो शॉपिंग, वो जनपद पे चले जाते हैं, लाजपत नगर में चले जाते हैं, मार्केट खो के आते हैं, कुछ खरीदना नहीं है, देखेंगे अगर कुछ पसंद आ गया तो। दिस इज लाइक दैट। तो फिर क्या करें ऐसे में? अब इमेजिन करिए, लाइक लेट्स से आई एम अ 38-year-old एंड आई वांट टू गेट मैरिड। मैं बहुत साल से ट्राई कर रही हूँ, बट यही मेरा रास्ता बना हुआ है। मैं लड़कों से टिंडर पे मिलती रहती हूँ और कुछ भी बन नहीं पा रहा। नथिंग इज हैपनिंग, आई एम नॉट बीइंग एबल टू गेट मैरिड। मेरा कोई प्रॉपर बॉन्ड बन ही नहीं रहा किसी के साथ। मैं कैसे, क्या करूँ मैं? हाउ डू आई चेंज दिस? डू आई वॉन्ट टू चेंज? Yes, let's say I want to change this. Then how do I do it? First, go to a therapist. Okay. Do your self-awareness. What do you want? Okay. What are the reasons you are not getting? Are you a commitment phobic? Are you actually not looking for any one relationship? या हो सकता है सामने वाले की तरफ से रिस्पॉन्स ना आ रहा हो, क्योंकि आप उसको सबसे पहले वही दे रहे हो जो सबसे बेसिक नीड है उसका। हाँ, बट शायद वो आपकी भी तो हो सकता है ना प्राइमरी नीड हो। जैसे मैंने बोला, कुछ भी गलत नहीं है जी। कुछ सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। जंगल में शेर भी रहता है, जंगल में रैबिट भी रहता है, जंगल में हिरन भी रहता है, जंगल में चीता भी रहता है। आप क्या हो, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो आपकी जर्नी आपके साथ है। मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, होना क्या चाहिए, अगर हम उसकी बात करेंगे, आपके लिए रूल्स अलग हो सकते हैं, आपकी चॉइसेस अलग हो सकती। मुझे पेस्टल कलर पसंद है, किसी को बहुत ब्राइट कलर पसंद हो सकते हैं, राइट? किसी को सिंपल लिविंग पसंद हो सकती है, किसी को लग्जरी लिविंग पसंद हो सकती है। चॉइस है ना, नथिंग इज रॉन्ग। बस ये रॉन्ग क्या है, मान लीजिए मुझे लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए और मैं चाह रही हूँ कि पैसा भी मेरे को कोई दे दे, मेरा खर्चा भी कोई उठा ले और मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े। मुझे राइट सारे पता है, मुझे ड्यूटीज कोई नहीं पता, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई नहीं पता, मुझे सब कुछ प्लेटर में चाहिए। मैं इंटाइटल्ड हूँ, मैं किसी की बीवी हूँ या मैं किसी का बेटा हूँ, प्रॉब्लम वहां है। या मैं किसी की बहू हूँ, या मैं इस ओहदे पर हूँ जो मुझे मिलना चाहिए, तो प्रॉब्लम वहां है। तो ये कहना फेयर होगा कि आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा, और टिंडर अगर पे आप बाहर आना चाहते हैं तो पैटर्न को तो ब्रेक करना ही होगा। अगर वो पैटर्न आपके लिए नुकसानदायक है, क्या उसका पता है आपके लिए नुकसानदायक है, वो आइडेंटिफाई और एक्सेप्टेंस होना भी जरूरी है ना। जैसे हम सबको पता है शराब पीना बुरा है, ऑफ कोर्स, यस, पर हम पीते हैं ना। जो लोग पीते हैं वो पीते हैं ना, क्योंकि उनको लगता है वो उनको कंफर्ट देता है, बट अदरवाइज वो आपकी इमोशंस को नम करता है, और वो भी सच्चाई से भाग रहे होते हैं, एस्केपिज्म। और जब कहीं से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो वो सहारा शराब या ड्रग्स में ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ढूंढ रहे हैं, हमें पता ही नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं। वो जो आपने बोला ना, यही साइन है इमोशनल इंटेलिजेंस के लो होने का, यही साइन है इमोशनल इंस्टेबिलिटी का। मे बी कहीं किसी हिस्से में गड़बड़ है, वही इंडिकेटर है, वही रेड सिग्नल है, किसी दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए। जैसे आपने बोला था ना, रेड सिग्नल, अगर एक चीज बार बार महसूस हो रही है और लगातार 6 महीनों तक महसूस हो रही, तो मतलब कुछ है। वी नीड टू गिव अटेंशन। अगर आपको बार बार रिश्ते में लग रहा है मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपको बार बार लग रहा है, अब वो है या नहीं है वो अलग बात है, बट आपको महसूस हो रहा था, इसका मतलब आप फील कर रहे हो, राइट, कॉन्स्टेंटली फील कर रहे हो। द मोमेंट यू गेट अवेयर, प्रॉब्लम का 50% सोल्यूशन तो वही हो जाता है ना। आपको पता लग गया कहाँ प्रॉब्लम है, नहीं पता लग रहा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, डिस्कस करिए, थेरेपिस्ट के पास जाइए, डिस्कस करिए। तो आई थिंक इसका मैं अगर इसका एक सार निकालूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आई थिंक टिंडर पे जाना बंद करना होगा, क्योंकि वहाँ पे उसी डायरेक्शन में लोग मिल रहे हैं,
वहाँ जाना बंद करना होगा, उन डेटिंग ऐप्स को यूज़ करना बंद करना होगा, एक ज़्यादा सीरियस प्लेटफॉर्म पे पार्टनर ढूंढना होगा, और इन बेसिक नीड्स में फर्स्ट 3, 4, 5 डेट्स में गिव इन नहीं करना है, खुद को रोकना है, राइट? तब शायद रिलेशनशिप एक सही मोड़ ले सकती है। अगर आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं तो। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये एक हमने स्टेटमेंट कई बार सुना है कि दोस्ती होनी चाहिए शादी में। एज अ साइकोलॉजिस्ट आपका क्या टेक है इस पे? क्या दोस्ती कितनी ज़रूरी है शादी में, होनी चाहिए या उसके बिना भी काम चलता है लोगों का? प्यार दोस्ती है, मैं इस बात से एग्री नहीं करती। हो सकता है जो आपका अच्छा दोस्त हो, क्या आप उससे प्यार करते हैं? और प्यार डेफिनेटली, प्यार तो दोस्त होने के नाते करते हैं, पर आप एज ए पार्टनर उसे देखते हैं। हो सकता है आप अच्छे दोस्त हो, पर क्या आप पति पत्नी हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी हैं अपने करियर में जहां पर पति पत्नी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो तब वो पति पत्नी नहीं है, तो वो पति पत्नी के रिलेशनशिप में गैप है। देखिए, पति पत्नी को दोस्त बनने में सालों लग जाते हैं। अगर हम अरेंज मैरिजेस का सेटअप देखें तो हम तो जानते भी नहीं होते ना, जिससे हमारी शादी हो रही है, हम कितना 2, 4, 10 मीटिंग्स में कितना जान पाएंगे किसी इंसान को। और 6 months इनिशियल ऑफ एनी रिलेशनशिप हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, मोर और लेस। Am I right? तो ऐसे में तो हमें तब पता चलता है 1.5 year के बाद कि एक्चुअल हमारा रियल पर्सनालिटी क्या है और कितने हम कंपैटिबल है, वो भी वक्त आने पर पता लगता है। तो ऐसे समय में आप बोले कि अच्छे दोस्त है, दोस्त में क्या होता है, हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, पर कई बार पति पत्नी के रिलेशन में एडजस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि दोस्त के साथ हम रोज मिलते नहीं है या उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर जब वही इंसान हमारा पति या पत्नी बन जाता है, हाँ। तो हमारी सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं और वो बढ़ जाती हैं। वहां पर वो पार्टनर फिट बैठ रहे नहीं, वो एक बात है। और दूसरा, क्या मुझे अपने दोस्त के साथ इंटीमेसी की फीलिंग्स आती हैं? हो सकता नहीं आती। मैंने कई शादियां देखी हैं जहां पर 2 दोस्तों ने आपस में शादी की, एक वक्त के बाद नहीं यार, वो ये मतलब मैंने बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाई, पर वो फीलिंग नहीं आ रही है। आई वुड से कि प्यार दोस्ती है, दोस्त बनने में वक्त लगता है, समझना पड़ता है, टाइम स्पेंड करते हो तो दोस्ती होती है। बट कई बार आपको, क्योंकि प्यार का नाम हम किसको आजकल दे देते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन को भी प्यार का नाम दे देते हैं। हाँ, इजीली दे देते हैं, राइट? तो पहली नजर का प्यार भी होता है, फर्स्ट टाइम लव, जिसे हम इन्फेचुएशन भी बोलते हैं। आप मानते हैं उसको? इन्फेचुएशन तो होता ही है ना। नहीं, बट वो प्यार होता है क्या? प्यार क्या है? बोलती ना इन्फेचुएशन। अगर आप रियल मापदंडों में प्यार बोले तो आपके बुरे और अच्छे और बुरे दिनों में, आपके सही और गलत में जो आपके साथ खड़ा है, वो आपसे प्यार करता है। वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है। Am I right? तो प्यार का मतलब साथ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और जरूरी नहीं है, हो सकता है कई बार आप जिससे प्यार करते हो आपकी दिल की बात ना समझता हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कई बार हम उससे एक हद तक बात कर सकते हैं, राइट? आपको प्यार तो हो सकता है ना, क्योंकि उस पर हो सकता है आपका कंट्रोल ही ना हो। फीलिंग है तो उस पर आपका कंट्रोल भी ना हो। ज्यादातर प्यार में आजकल लॉजिक भी तो चलता है ना, कन्वीनियंस। बट हाँ, हम देखते हैं ना, मुझे प्यार किससे करना है, यहाँ चलेगा नहीं चलेगा, हम बहुत सारे अपना factors अच्छा देखते हैं। रहेगा, अपने लिए ज्यादा अच्छा कहाँ है। प्यार में लॉजिक भी तो आ ही रहा है ना। तो प्यार अगर बिल्कुल, वो बोलते हैं ना प्यार तो अंधा होता है, एक्चुअली में अगर हम उसे प्यार अंधा होता नहीं कहते, हम उसे बेवकूफी बोलते हैं। प्यार करिए, नो डाउट, बट आप कितने एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्त है, हो सकता है कुछ चीजें आपको उस इंसान में ना पसंद हो जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपका पार्टनर है, बट इट्स ओके। हो सकता है आपका जो अच्छा दोस्त है वो दोस्त हो, वो आपका पार्टनर की तरह नजरिए से उसको आप देखते ही नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप ये नहीं कहिए कि मेरा पार्टनर मेरा दोस्त होना जरूरी है। आपका पार्टनर आपका दोस्त है, बहुत अच्छी बात है, बस ये देख लीजिए वो पार्टनर है। क्योंकि मैं अभी भी कह रही हूँ, मैंने बहुत सारी शादियां देखी है जहाँ वो अच्छे दोस्त हैं, पति पत्नी के रिश्ते नहीं है उनमें, अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो उस लेवल की। नहीं, अंडरस्टैंडिंग है ना, हम बाहर में सोशली जाते हैं, बड़े रिस्पेक्टफुली डील करते हैं एक पेरेंट का, पर डीप अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। वो बहुत सुपरफिशियल लेवल के रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, कुछ शेयर नहीं करते एक दूसरे से ज्यादा। तो हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ये कुछ नहीं कहते, मुझे पता है वो, बाकी बार बहुत सेंटेंसेस भी होते हैं ना, मुझे पता है वो इतना ही करेगी, इससे ज्यादा नहीं, या वो इतना ही करेगा, वो ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट दिख रही है ना। जो मैंने बोला है, जब आप प्यार करते हो तो दोनों तरफ अट्रैक्शन होता है, दोनों तरफ लगाव होता है, दोनों तरफ से उतनी ही इन्वेस्टमेंट होती है रिश्ते में। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एक तरफा प्यार
तो आप जानते नहीं हो उस इंसान को। कोई आपके पॉडकास्ट को देखकर आपसे प्यार कर सकता है, am I right? आपकी बातें सुनकर प्यार कर सकता है। आप रोजाना की जिंदगी में कैसी बिताती हैं उसको पता ही नहीं है। वाइस वर्सा इट्स फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि वो डेली डे टू डे लाइफ में किसी के साथ जिंदगी गुजारना टोटली डिफरेंट है, और उसमें आप कितना एक दूसरे के प्रति एडजस्ट कर पाते हो। मतलब शादी में दोस्ती ढूंढना जरूरी नहीं है। नहीं, क्यों ढूंढना है दोस्त? दोस्त उसके लिए बने हैं ना, पार्टनर प्यार करने के लिए बने हैं, तो प्यार करिए ना उससे। Am I right? थोड़ा और डीप उतरिए उसके साथ। बहुत सारे लेवल्स हैं ना, सिर्फ एक ही लेवल नहीं है ना। Am I right? जैसे कोई स्टूपिड बातें कर सकता है आपके साथ, आपको इंटेलेक्चुअल बातें करना पसंद है, तो वो दोस्त बन सकता है, बट पार्टनर अच्छा नहीं बनेगा। नहीं हो सकता है उसी पार्टनर से आपको प्यार हो, बट आप दोस्त से डीप लेवल की बातें कर सकते हैं, दोस्त से आप अपने दुख शेयर कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज पार्टनर के साथ करनी, मतलब हर एक पर्सन का रोल है। माँ का अपना रोल है, am I right? फादर का अपना रोल है, सिस्टर का अपना रोल है, फ्रेंड्स का अपना रोल है। तो दोस्ती के रोल में पार्टनर को क्यों ले लाना है? दोस्त को दोस्त रहने दीजिए ना, am I right ना? कई बार हम लोग बोलते हैं यार ये मेरा अच्छा दोस्त है, एक्सेप्ट इट, am I right? उसमें हो सकता है उस पार्टनर के मल्टीपल पार्टनर्स हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, बट शायद वो जब पर्सनल में आए तो हम ऐसे इंसान को पसंद ही ना करें। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि दोस्ती के क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकते हैं। राइट, अग्री, am I right ना? क्योंकि हम उसको जज नहीं करते ना, पर प्यार के टाइम हम उसे जज करना शुरू कर देते हैं। ओनरशिप आ जाती है, शायद एक हक दोस्ती दोस्ती में, तो दोस्ती में भी आता है, बट उस लेवल का नहीं होता। नहीं, अब आप मानती है ना डिफरेंस है ना? हाँ है, फर्क है। वो कैसे फर्क है? क्योंकि आप उस इंसान को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हो, उसने अगर आपको बुरा भी बोला तो एक्सेप्ट कर लोगे। तो दोस्ती और प्यार को मुझे ऐसा लगता है एज अ थेरेपिस्ट हम मिक्स ना करें। अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, दोस्ती जरूरी नहीं है। ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग से भी तो काम चल सकता है ना। डीपर लेवल की फ्रेंडशिप ही क्यों करनी है? प्रेशर बना देते हैं लोग बिना बात के, बहुत हाँ, मतलब ज्यादा। मुझे लग रहा है वो फिल्मी डायलॉग प्यार दोस्ती ऐसे, भाई हम दोस्त बन जाएं अच्छे, हाँ, बन जाओगे, वक्त के साथ दोस्त बन जाओगे। नहीं भी बने तो चलेगा, पति पत्नी अच्छे बन जाओ। मतलब ये भी नहीं कि बेस्ट पति पत्नी बनना है, 50% भी आपकी मैरिज चल रही है, रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत बढ़िया। हर चीज में हमें 100% मार्क्स थोड़ी लेने हैं, परफेक्शनिस्ट थोड़ी बनना है। टॉप 3 क्वालिटीज हो सकती हैं, 3, जो एक अच्छी शादी के लिए बहुत जरूरी हैं आपके हिसाब से। आई वुड से डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू आर लुकिंग इनटू अ पार्टनर। वो मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं हम पार्टनरशिप तो ढूंढ ही रहे हैं ना रिश्तों में, ट्रस्ट तो ढूंढ ही रहे हैं ना रिश्तों में, रिस्पेक्ट तो ढूंढ ही रहे हैं रिश्ते में ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब कोई मॉनेटरी चीजें भी ढूंढ सकता है, कोई फिजिकल अपीयरेंस भी ढूंढ सकता है, नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग। पर मेजर जिसे बोलते हैं अगर रिश्ते को चलना है तो उसके लिए प्यार भी उतना ही जरूरी है। क्या प्यार के बिना शादी चलती है? देखो, प्यार कई बार ऑन एंड ऑफ होता है, क्योंकि कई बार आप प्यार को एक साइड पर भी रखते हो, जैसे आप प्यार करते हो कई बार उसको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो, तो भी तो शादियां चलती है ना। पर वो अगर परमानेंट है आपका तो प्रॉब्लम है ना, और विश्वास ही नहीं है तो। ट्रस्ट इज द मेन फैक्टर इन रिलेशनशिप ऑल्सो। इट्स लाइक ए सीमेंट, रिस्पेक्ट इज ऑल्सो लाइक ए सीमेंट। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब उसके ऊपर अगर किसी के लिए लॉयल्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाँ, किसी के लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट हो सकती है। हर एक का क्राइटेरिया अलग है। हाँ, मतलब किसी के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेरा पार्टनर मुझे समझ ले, बस इतना काफी है। इतना काफी है। आई रिमेम्बर अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कहता था कि मेरे जोक्स पे हंस ले, वो बड़ा जरूरी है मेरे पार्टनर के लिए। हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग अगर जरूरी है तो उसमें काफी कुछ कवर हो गया ना। अंडरस्टैंडिंग, आज मेरा मूड है या आज मैं थका हुआ या थकी हुई हूँ, तो काफी है। अगर हैक्टिक डे रहा, आपको नींद आ गई, अब वो पार्टनर है, नहीं तुम मेरे से बात किए बिना सो कैसे सकती हो? अगर वही दोस्त है, कोई बात नहीं यार, कल बात कर लेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग है जो दोस्तों में हम कई बार ढूंढते, अधिकतर होती है जब हम दोस्ती करते हैं। राइट, हाँ, उतना हक नहीं होता है ना कि शिकायत करें हर छोटी छोटी बात शिकायत पे। बट एक्सेप्ट ही कर लेते, फिर क्या हो गया? वी शो ना दैट मच ऑफ बिग हार्ट। हाँ, बिकॉज टाइम भी तो लिमिटेड स्पेंड करते हैं फ्रेंड्स के साथ। जब हम पार्टनर के साथ होते हैं तो पजेसिवनेस आ जाती है, जो कि टू सम लिमिट अच्छी भी लगती है, नहीं? अच्छी लगती है। नो, इट्स नथिंग रॉन्ग
बट आई एम सेइंग यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम ए पर्सन टू मच. कुछ होने से मतलब मुझे नींद नहीं आ रही, तुम मेरे पार्टनर हो, तुम भी मेरे साथ जागो. या एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, बट अगर आपका ये रेगुलर पैटर्न है, हाँ, तो फिर बहुत बॉदरेशन बढ़ जाएगी. एक इंटरेस्टिंग सवाल है दैट आई वांट टू आस्क ऑन बिहाफ ऑफ मेन. अ लॉट ऑफ मेन गो थ्रू दिस. मैंने कमेंट सेक्शन में कई बार इस तरह की चीज़ें रील्स वगैरह पे पढ़ी हैं, तो एक माइंडसेट पता चलता है कि इंडिया में मर्द शायद इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि शादी करके जब बीवी घर आती है उनकी प्रायोरिटीज सेट नहीं हो पाती कि वाइफ की बात मानूं या पेरेंट्स को संभालूं. एक उनके बीच में ना एक खींचातानी में फंस जाते हैं. वो वाइफ कह रही है तुम सिर्फ उनकी सुनते हो, मेरी नहीं सुनते. पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा तो अब बहू का हो गया है. मतलब हाउ कैन मेन रिजॉल्व दिस इशू फॉर देमसेल्व्स? देखिए अगर बेटा पहले माँ का था तो वो एक पार्टनर तो आ ही गया है ना, तो थोड़ा सा डिवाइड अटेंशन तो होगी, और जिसको पहले फुल अटेंशन मिल रहा था उसको कम अटेंशन मिलेगा. उसे प्रॉब्लम होना तो जायज़ है ना. हाँ, इट्स लाइक ना, एक बच्चा है, 2 बच्चे हो जाए तो उसका अटेंशन डिवाइड हो जाता है. तो माँ के लिए वो बेटा खोना फील होती है वो चीज़, मतलब विमेन में है वो चीज़. होता है. मदर इन लॉज ऐसा करती हैं. सेम वे में जब एक वाइफ भी जा रही है सामने वाली की लाइफ में, उसको भी समझना होगा वो 20 साल के रिलेशनशिप है. जब आप ये मान लेंगे कि ये उनके लिए नॉर्मल है, उनका इट्स नथिंग पर्सनल, ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा ट्रेट हो सकता है कि मेरी चीज अब बट रही है, तो आप इसे कैसे लेते हो ना. अगर आपका एक बच्चा है, आपका अटेंशन दूसरे बच्चे पर जा रहा है, तो बड़े बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है कि आप छोटे को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे. तो वो टेंशन को हाउ द नाउ अगेन, इससे एक मेल उसको मदर की अटेंशन को कैसे समझाता है. उसको मदर के साथ बैठ के बात करनी है. अब किसकी सुने की बात नहीं है. आई थिंक सो अगर पति पत्नी में या मदर इन लॉ में, वाइफ में प्रॉब्लम है, तो आपको गन क्यों बनना है बीच में. आप बोलो यू आर बोथ आर मैच्योर एंड एडल्ट्स, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक विद ईच अदर. मतलब वो वाइफ क्या करती है, लव मैरिज स्पेशली, पति के पास जाएगी, अरेंज मैरिज तो भी पति के पास जाएगी. तुम अपनी माँ से बात करो, या हर बात के लिए वो हस्बैंड को बोलेगी यू आर मैच्योर इनफ. हर बार जाके थोड़ी बोलोगे टीचर मैंने इसने रबड़ ले लिया, टीचर इसने मेरी पेंसिल ले ली. इट्स लाइक दैट. हेजिटेशन नहीं होती है इस रिलेशनशिप में. इट्स सो डिफिकल्ट टू गो अप टू सीनियर्स, पीपल who you've not spent too much time with, उनसे इस तरह के डिफिकल्ट टॉपिक्स और डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करना. रिलेशनशिप ही तो बनाना है ना. रिश्ते बनाएंगे तो उनके आई प्रॉब्लम्स को भी हल करेंगे, तो ऐसा तो रिश्ता ही डेवलप नहीं होगा ना. वो तो डेवलप रिश्ता किसका होगा, बेटे और मम्मी का. और अगर आपने बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर दी माँ के बारे में, चाहे वो गलत है सही है वो सेकेंडरी बात है, तो हस्बैंड के दिमाग में भी एक इमेज बन जाएगा कि मेरी बीवी हर वक्त बुराई करती रहती, क्रिप करती रहती, कंप्लेन करती रहती है. बट ये कहीं ना कहीं विमेन के साथ ये चीज़ गलत हुई है ना, कि विमेन को ये परसेप्शन बहुत मैनेज करना पड़ता है कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं. ये इशू मर्दों के साथ तो नहीं आता. देखिए क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशंस है. कई बार कई मेल भी बोल देते मैं नहीं चाहता तुम मेरी मदर को जवाब दो. तो इन टॉपिक्स पर डिस्कस पहले से ही करिए ना शादी में. जो नॉन नेगोशिएबल्स की बात कही थी मैंने, कि मैं नहीं चाहता तुम मेरे पेरेंट्स को कभी जवाब दो, या मदर इन लॉ में या मुझ में झगड़ा हो, तो आप एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाइए ना कि भाई मुझे अगर इनके साथ अब अगले 40 साल रहना है, या मैं 30 साल इस परिवार के साथ रही हूँ, अगले 50 ईयर्स मुझे इस फैमिली में रहना है, तो मुझे अपना बेस तो बनाना होगा. हम कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहां हमें रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं ना. तो अब तो हम, आपने जैसे बोला था कि एक घर से दूसरे घर में लड़की जाती है, आजकल लड़कियां जाना नहीं चाहती. हम ऑफिस में जाते हैं ना, नए ऑफिस में अपने जिंदगी के कितने घंटे गुजारते हैं, नए काम में गुजारते हैं, स्कूल में गुजारते हैं. हम करना चाहते हैं वो सब? नहीं करना चाहते ना, पर हम करते हैं क्योंकि वो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है. तो हम करते हैं. तो रिश्ते में अगर पत्नी लड़का लड़की के घर जाए या लड़की लड़के के घर जाए, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ रहना है और फ्यूचर यही है, तो आप रिलेशनशिप बनाओगे. यू विल फाइंड इट आउट व्हाट आर द कॉमन ग्राउंड्स. अगर 15 मिनट 20 मिनट या हाफ एन आवर मदर इन लॉ से बात करके, उनके साथ गॉसिप करके, जो आपको पसंद भी नहीं है, उनके सास बहू के सीरियल सुन के, उनकी कुछ भी भजन सुन के कुछ बॉन्डिंग बन सकती, तो व्हाट इज बैड इन दैट? यू कांट टेक दैट लाइफस्टाइल विद यू, दैट्स ओके. You may not like that the jewelry she wants you to wear. It's okay. But at least make a working relationship. हाँ, वर्किंग रिलेशनशिप. वर्किंग रिलेशनशिप तो बना के रखिए ना. अगर आप एक घर में रह रहे हैं और वहाँ वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं है आपके, आप साथ में बैठकर एक कप चाय भी नहीं पी सकते,
ये भी तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, बहुत स्ट्रेस का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, घर घर जैसा नहीं लगेगा। अगर उनको आपकी कोई बात नहीं पसंद है तो बिकॉज वो भी तो एक बैगेज के साथ आ रही है, उनका बॉर्न एंड बॉटअप है। उनकी सास ने उनके साथ कैसा किया, या उनकी मदर ने उनके साथ कैसा किया, या उनके पति ने उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया, तो वो भी बैगेज के साथ ही आ रही है। आई थिंक मेल मेंबर्स के पेरेंट्स के साथ ये एक ड्रॉबैक कहूँगी मैं शायद, कि ये ड्रॉबैक है कि उनको अपनी उम्र के उस पड़ाव पे एक नए इंसान को अपने घर में जगह देनी होती है। उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है, आई एम श्योर। अगर लड़की के लिए उस घर में जाके रहना मुश्किल है, अपने लाइफस्टाइल को छोड़कर, अपने स्पेस को छोड़कर, उतना ही मुश्किल उस परिवार के 2, 3, 4 या 5 मेंबर्स हैं, जितना भी परिवार बड़ा या छोटा है, उसको भी एक पर्सन को आकर एडजस्ट करने में। कई बार मेल्स को प्रॉब्लम होती है, रूम शेयर करना पड़ेगा, बाथरूम शेयर करना पड़ेगा, अलमीरा शेयर करनी पड़ेंगी, तो वो भी एक आसान नहीं है उनके लिए भी। वो कुछ लड़के तो यही सोचते हैं कि मैं शादी करने से फ्रीडम चली जाती है। यप, वी हैव टू टेल देम नहीं, कोई फ्रीडम नहीं जाती है। लड़कियां भी यही सोचती हैं शादी करने से हमारी फ्रीडम चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं होता कि मेरी फ्रीडम गई है शादी करने से। आई थिंक आई एम इवन मोर फ्री, बिकॉज अगर आप शादी नहीं करते और आपका बॉयफ्रेंड है, तो अगर आपको उसके साथ जाना है कहीं, तो आपको छुप के जाना पड़ेगा। शादी करके आप डंके की चोट पे जाओगे, फिर आपको वो बर्डन नहीं आप पे कि कहीं कोई पिक्चर्स लीक ना हो जाए, कहीं घर पे ना पता चल जाए। स्ट्रेस होता है ना इन सब चीज़ों का, तो एक तरीके से फ्रीडम आ भी तो रही है। मतलब अभी मैं एक केस कर रही हूँ, तो उसमें एक लड़के ने बोला, मतलब मेरे घर वाले ये बोलते हैं कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम 4 बजे तक बाहर रहना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बीवी के साथ। मतलब हम लड़कियों को भी सुनते हैं, लड़कों को भी बोलते हैं पेरेंट्स। हाँ, फैमिली किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है। हमें लगता है तुम गलत संगत में ना चले जाओ। फेयर इनफ। क्या लड़कों को पालना लड़कियों के पालने से ज्यादा मुश्किल है? मैं मानती हूँ ऐसा, जो मुझे दिखता है आसपास। मैंने पाला किसी को नहीं है, बट डिपेंड्स अपॉन आई थिंक व्हाट सॉर्ट ऑफ टेम्परामेंट। लड़के ज्यादातर थोड़े ज्यादा नॉटी नहीं दिखते कंपेयर टू गर्ल्स। आई डोंट नो, ऐसा है क्या? मुझे और आपको देखकर कह सकते हैं। हाँ, हम थोड़े से ऑड वंस आउट। तो ऐसा नहीं है, बट अगेन आप बचपन में कई बार शरारतें नहीं करते हैं, बड़े होकर शरारतें करते हैं। कई बार आप बचपन से ही बहुत नॉटी होते हैं। मैंने ऐसे बहुत देखा है जो बहुत नॉटी थे, बहुत सिंसियर हो गए, और जो बहुत सिंसियर थे वो नॉटी हो गए। दिमाग चेंज हो जाता है लोगों का, डिपेंड्स करता है। और कुछ जैसे थे वैसे ही रह रहे सालों से, वो चेंज ही नहीं हो रहे। वो बोलते हैं हाँ मैं क्यों बदलूं शादी के बाद, मैं तो ऐसा ही था, ऐसा ही रहूंगा, वाइस वर्सा। तो कहीं ना वो मम्मा का बेटा पापा की परी हो। बच्चों को कैसे पालना चाहिए, सख्ती में या आजादी में? क्या बेहतर है? मिडवे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके, डिसिप्लिन नहीं होगा तो भी लाइफ कुछ नहीं है, और फ्री होगा तो भी लाइफ कुछ नहीं है। आपका फर्ज है उनको बताना, लॉजिक से चीजें समझाना। बाकी डिसीजन मेकर तो बच्चे खुद होंगे, और उन्हें बनाने भी देना चाहिए। पर ऐसा भी नहीं कि हम बच्चों को किसी चीज के लिए रोकते नहीं। हाँ, पर ऐसा भी नहीं हम बच्चों को हर चीज के लिए बहुत नजर रख रहे हैं। इट शुड बी इक्वल, जिसे बोलते हैं म्यूचुअल हैप्पीनेस वाला कंसेप्ट होता है, और जिसे बोलते हैं एक्सट्रीम ना हमें इंडिपेंडेंस देनी है, इट इज शो इंटरडिपेंडेंस। ओके, ऐसा सच है क्या कि फर्स्ट 5 years ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ आर हिज और हर फॉर्मेटिव ईयर्स, एंड वो सच में क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। वही हमारा कहीं ना कहीं रिलेशन, जिसे बोलते हैं, बेस बनाता है। उन 5 years में क्या करना जरूरी है? बी मोर फ्रेंडली विद योर चाइल्ड और बी मोर स्ट्रिक्ट विद योर चाइल्ड? आई वुड से आप कई बार ना, जब बच्चा शुरुआत में भी होता है, हाँ, आप अगर ओवर पॉसेसिव मदर या फादर हो तो भी वो गलत है। अगर आप बहुत ज्यादा लीनियंट हो वो भी गलत है। बट बच्चे को थोड़ी फ्रीडम तो आप दोगे ही। देयर इज, यू टॉक अबाउट इमोशंस और नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बच्चा क्या चाहता है? अभी मैं आज एक क्लाइंट कर रही थी केस, तो उसमें उसने पेरेंट्स ने उसकी हर जिद को पूरा किया, स्पेशली फादर ने। उस पर्सन ने कभी ना ही नहीं सुना, तो उसको ना सुनने की आदत नहीं है, चाहे वो बीवी बोले चाहे वो कोई और बोले। तो ये भी बच्चों को रिजेक्शन बताना भी जरूरी है। हाँ, बच्चों को हर बात के लिए मनी से मोटिवेट करना भी जरूरी नहीं है। वो तो गलत हो जाएगा बहुत। तो रिवॉर्ड भी देना जरूरी है, पनिशमेंट भी देना जरूरी है। पनिशमेंट का मतलब हमेशा मार नहीं है।
कई बार आप चीजों को भी विड्रॉ कर लेते हो पनिशमेंट में. तुम्हारा वॉचिंग टीवी टाइम, कम हो प्ले गया है. टाइम. हाँ. राइट. तो दोनों ही जरूरी है. और सबसे ज्यादा जरूरी है मम्मी और पापा ना बनना, पेरेंट्स बनना. हम चाहे डिसाइड एक पर्सन करे, वेरी वैलिड पॉइंट. चाहे डिसाइड एक पर्सन करे, पर मैसेज ये जाना चाहिए मैं पापा से बात करके बताऊंगी, मैं मम्मी से बात करके बताऊंगा. चाहे डिसीजन एक इंसान का हो. जब आप वी कंसेप्ट दोगे तो बच्चे को पता चलेगा टीम हो. और जब आप आई का मैसेज दोगे तो वो जाएगा ट्रायंगुलेशन की तरफ भी हो सकता है. मम्मी पापा, हमें पता है मम्मी से बात मनवाई जा सकती, पापा से ये बात मनवाई जा सकती. किड्स आर वेरी स्ट्रांग एंड स्मार्ट इनफ. एक छोटी सी बच्ची की रील देखी थी, उसमें मम्मी ने मना किया यू कांट हैव अ कुकी, फट से गई पापा के पास, डैड कैन आई हैव अ कुकी. तो डैड ने फौरन यही बोला व्हाट डिड योर मॉम से. तो फिर उसका पोल खुल गया. उसका इंटेंट नहीं था बताने का कि मम्मी ऑलरेडी मना कर चुकी है. बट यस, आई थिंक आई कैन मैसेज जो रिकॉल दैट. वी दे रहे हैं ना वो मैटर करता है. आपका पेरेंटिंग में एक थॉट प्रोसेस सिमिलर होना या एक पॉइंट पर दोनों का आना जरूरी है. वैलिड, वेरी वैलिड पॉइंट. और वो हम नहीं करते. हम बच्चे की फिजिकल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, यानी कि वो दिखता कैसा है, या वो एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा. हम बच्चे की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, मार्क्स कितने, एकेडमिक्स कैसा है. हम बच्चे की सोशल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, वो भी जरूरी है. उसके दोस्त है नहीं है, कितने हैं, क्या है, होने चाहिए. बच्चा मिलता है, बात करता है नहीं करता, 10 से नहीं करता 2 से करता है. इमोशनल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना भी जरूरी है. उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. उसकी हर जिद को, जैसे मैंने बोला, पूरा करना भी जरूरी नहीं है. कई बार बच्चे और उससे इंट्रोवर्टेड भी होते हैं. पूछना. बिल्कुल. तो ये देखा जाता है कि इंट्रोवर्टेड बच्चों पे पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं कि दोस्त बनाओ, बात क्यों नहीं करते, मिलके आओ किसी से. मैंने ये ऑपोजिट चीज भी देखी है. हर तक में भी, बट ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट के दोस्त नहीं होते, 1-2 हो सकते हैं. तो ये फेयर है. मतलब बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए ना, जबरदस्ती दोस्त बनाओ, प्रेशर दोस्त नहीं डालना, बनाओ. पर सोशलाइज बच्चा करे वो भी बहुत जरूरी है. इंट्रोवर्ट को भी एटलीस्ट वंस ए वीक तो बाहर निकले, हाँ. वो किसी से कम्युनिकेट तो करे. अगर आप बिल्कुल ही अंदर हो जाओगे तो और मुश्किल है. आप अपनी प्रॉब्लम्स किससे शेयर करोगे. जो हम दोस्ती की अभी बात कर रहे थे, रिश्तों में दोस्त तो होना चाहिए ना कोई, जिससे हम दिल की बात कर सके, जो आपको जज ना करे, आपको फिल्टर होकर ना रहना पड़े. इज इट रियली ट्रू कि लोग, कोई होता है ऐसा दुनिया में जो आपको जज ना करे? आई फील एवरीबॉडी जजेस. ऐसा नहीं है. जो दोस्त होते हैं वो तो आपको एक्सेप्ट करते हैं ना जैसे आप हो. वो आपको जज क्यों करेंगे. वो आपके कहीं हालातों को समझेंगे ना. अगर तुमने ये किया तो क्यों किया. आई थिंक सो. एक मतलब कैसे आपकी जनरेशन की तो मूवी भी आई ना, आई थिंक सो, रणबीर कपूर की और दीपिका पादुकोण, उसमें फ्रेंड्स होते हैं. काल की कोचिन भी आई. हाँ, नहीं वो है ये, अरे वो वाली ना, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड. आई डू नॉट नो, रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी. तो मतलब Even I don't remember. फ्रेंड्स होते हैं ना उसमें. मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, फीमेल फ्रेंड्स भी होते हैं, और वो फ्रेंड्स होते हैं. राइट. वो अगर ड्रिंक करता है तो फ्रेंड्स उसको जानते हैं वो क्यों ड्रिंक करता है. राइट. राइट. ओके, वन मोर थिंग. सो अगर किसी को पॉर्न का एडिक्शन है तो इस पे क्या कर सकते हैं, और वो कितना डैमेजिंग है आपके माइंड के लिए? बहुत डैमेजिंग है आपके माइंड के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए. बिकॉज वो एक अनरियलिस्टिक क्राइटेरिया आपके सामने रख रहा है. क्योंकि वो लोग तो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में वो सब परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको तो कैमरे शूट के लिए, मॉनिटरी के लिए करना है. एंड वी आर गेटिंग इम्पैक्टेड बाय दैट. इट इज लाइक हम इंडिया में बॉलीवुड मूवीज से कितना फैसिनेटेड होते हैं, हॉलीवुड मूवी से कितना फैसिनेटेड होते हैं. Real life is not about that, na. You are into act in so much long time. Another thing is that when you started, basically, आप उसी पर अगर डिपेंडेंट हो तो आपको रियल लाइफ में तो मजा ही नहीं आएगा ना. ये तो वो हो गया ना, अगर आपको बाहर का खाना देखकर ही मन भर रहा है आपका. डोपामाइन probably to blame, हाँ. Easy dopamine. डेफिनेटली. आपको ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ता, इजीली अवेलेबल है, कभी भी मन करे. हाँ. आपका पार्टनर है नहीं है, इट्स ए इलनेस. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. इफ यू आर रेगुलर वॉचिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ इलनेस. एंड डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स योर परफॉर्मेंस इन रिलेशनशिप. Emotionally and physically, both. Both. And mentally also it impacts your brain.
कुछ लोग जब इस एडिक्शन में घुस जाते हैं तो उनको दिन रात सिर्फ इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। Will it be safe to say कि वो stupid हो जाते हैं? आई वुड से इट्स अ पार्ट ऑफ इलनेस। ऑब्सेशन हो गया ना, तो आप बिना उसके, जैसे हमें चाय पीने की आदत है, हो सकता है, तो उस तरह उनको उस एक्ट की रेगुलर की आदत पड़ गया। जब तक ये टीवी शो नहीं देखेंगे, तो जब तक हम पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं देखेंगे, हमें नींद ही नहीं आएगी। Okay, yeah. और पार्टनर में ऑब्वियसली है, वहाँ पार्टनर एक्टिव होता है, प्रोएक्टिव होता है। स्पेशली इंडिया में फीमेल्स अगर ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो आप एक्सपेक्टेशंस वैसा करना शुरू कर देते हो, पर्टिकुलर एंगल से। अब आप रेगुलर रूटीन का पार्ट हो, आई डू नॉट नो कितने पार्टनर्स फिजिकली डिफरेंट पोजीशंस के लिए रेडी होते हैं, तो आपको तो एक्सपोजर मिल रहा है ना। You're learning too much too fast. या एंड देन यू गो टू डिफरेंट मसाज पार्लर्स, देन समटाइम्स यू वांट कि कपल मसाज कराते हैं, देन वो आपका अनदर लेवल चला जाता है। Your life starts to revolve around sex. That's also one of the thing. मतलब आपके दिमाग में अगर आप एक तरह से योग करना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं तो उस तरफ डाइवर्ट होगा ही ना। Of course, of course. If you're consuming such content, that means somewhere you're getting attracted by it. कितने And you're- परसेंट आप उस कंटेंट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हो? बहुत ज़्यादा, मोस्ट। अगर एडिक्शन की बात हो रही है तो प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे मेल्स हैं जिनके ग्रुप्स होते हैं ऐसे, पर्टिकुलरली उनके गुड मॉर्निंग मैसेजेस ही ऐसे शुरू होते हैं, जिसे बोलते हैं मेल्स ग्रुप। दैट्स अ रियलिटी, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते ना। क्या ये इंडिया में आपके सामने ये प्रॉब्लम आपने देखी है जब लोग थेरेपी के लिए आते हैं? इट इज़ अ प्रॉब्लम। बट उसमें से ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं हम पॉन ही तो देख रहे हैं, हम जाके थोड़ी कुछ कर रहे हैं। हम चीट थोड़ी कर रहे हैं। बट दैट्स एडिक्शन ऑफ एनी सॉर्ट इज रॉन्ग। किसी भी चीज़ की अति। तो वो उसी में आता है, और अगर आप इसके शिकार हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। एक्सेसिव केस में आपको मेडिसिन लेने की जरूरत है। लाइक weird complaints people started having. Like? बहुत weird. आप बताना चाहेंगे? You can't imagine. It's weird. मतलब Can you tell me? Because I don't deal in that much of, जो मैं typical sexual intimacy से related problems में deal नहीं करती. Yeah. I deal with sexual intimacy of a couples. But when someone is having a weird kind of, जैसे fetish होता है, fetish type word. BSM जैसे होता है, अगर वो 50 Shades of Grey. So these are the disorders basically. Okay, so these are disorders. These are sexual disorders. And this is not normal for a person to ask for? These are sexual disorders. अब वो अगेन आप नॉर्मलसी जिसको मानते हैं, भाई अगर योर पार्टनर इज रेडी टू डू द मतलब I dealt with, when you are asking, so I'm remembering there was the clients are cases I did it when where one partner is imagining I am her friend, her friend's husband, मतलब different roles play करते हैं, role play during intimacy times. मतलब both of them are into it. They talk about it कि this is the role you're taking up. This is also the part. Yeah. मतलब वो तो हम अलग बात करते हैं, अब मैं जो बात कर रही हूँ वो तो एक अलग ही लेवल है. Both are agreeing. मतलब ठीक So चल जाएगा फिर तो. I want my partner to someone will in front of my eyes. This is extreme, I'm saying it. This is again is disorder, ना? When you say polygamy, अब इसको आप क्या नाम देंगे? Confusion है बहुत. I don't know what to call it. So this is there is what people talk about. And that's an illness. I never thought of it as an illness. But yeah, I think it makes sense because illness का क्या definition है? If something is impacting your lifestyle, right? In a negative way, you can call it an illness. Another thing is that when you are with the partner, that your partner is ready for that. I've done cases where one partner is pushing another partner. You should go interact with this person, a male. You choose which one with whom you want to go. Go for a date with this guy. Oh my God, this is still cringe and difficult to imagine. Yeah. Because when we get into the depth, we got to know this partner is actually already doing multiple partners or sleeping with multiple partners. अब उसको अपनी गिल्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ तो करना है.
Okay. एंड देन द पर्सन इज सेइंग मैंने तुम्हें मोटिवेट थोड़ी किया था, मैं तो सिर्फ सजेशन दे रहा था, अगर तुम्हारे अंदर नहीं होता तो तुम कैसे कर लेती? आर यू गेटिंग माय द फीलिंग ऑफ गिल्ट यू आर गिविंग टू द पर्सन? Yeah. You are not active in that activity. I want you to convince. Wow. This is scary. So that's, don't you think now it is illness? It is. And this is manipulation of another level. That is sexual manipulation. The breach of trust is there. Na? So it's not about the porn and it's about not these things. आपको कोई अपना बहुत इंटरेस्टिंग केस याद है दैट यू वांट टू शेयर? आई मीन वी डोंट वांट नेम्स ऑब्वियसली. I dealt with one couple where the parents brought the couple to me for marriage counseling. It's a painful basically thing. And I remember the girl had borderline personality disorder. Okay. And What would she do? matlab, extreme loneliness, the born and brought up in a very difficult family where father was a drinking habit and all. Both families were very nice, very good people. There is no doubt about that. And the girl was extremely sensitive. So then at that time the couple was coming to me, very young couple. I think so 27, 26, 27 years old or 24, 25 बहुत छोटे years. हो गए. हाँ. बहुत छोटे couple because parents लाए थे. And during the counseling I realized that guy is taking too much of stress. Too much of stress. So I told him, you are taking so much of stress. I'm feeling fearful for you. So because the parents brought the case, so I said, you come with your dad. Please once come with your dad. I told his dad, I'm worried about your son. He's taking so much of stress because the balance you said it, na? Wife or parents ke beech mein. They were living in a joint family. So I said to his dad, he was sitting in front of me. I said, I'm worried about this, your son. And I think so, if he's not able to manage his stress, मुझे डर है, मुझे लगता है नहीं तो आपको इसको इस शादी से बाहर निकाल लेना चाहिए. As a therapist, I said this. Wow. I'm worried about his, इसको कुछ हो जाएगा. I do not know. मतलब मैंने उसको ऐसा बोला. And I remember he put a challenge to me. मैं इसी लड़की से आपको बच्चा करके दिखाऊंगा. Divorces आपके परिवार में होते होंगे, हमारे घरों में नहीं होते. This the guy said, youngster guy. And I think so after 1 or 2 months, he stopped coming for counseling to me. And 2 years down the line, one day her wife messaged me and got to know he's no more. Oh, His child was, I think so, months or days old. And I forgot, like the day I got to know he's no more, I cancelled all my appointments. I rushed back to find it out from the address from his case records. And the moment I entered his house and they got to know I came, and then his dad made me remind, doctor, you said this 2 years back. He committed suicide. And it was a shock to me. And sometimes now I still today, when I see something, so I tell people, I'm worried about you. Please take care of yourself in relationships. So I believe as a therapist, it's not someone's life is enjoyable or something interesting. It's painful. Even who goes into infidelity also is painful. Who goes into depression is painful. Who is into anxiety is painful. I do not know 1,000 couples, 1,000 people cries in front of me. मतलब I think so yesterday one of the partners said to me, मेरी बीवी सिर्फ आपके सामने रोती है. मैंने उसको घंटों आपके सामने रोते देखा है. She doesn't cry at all. It's like, I know. उसको सेफ फील नहीं होता होगा हस्बैंड के सामने रोले में. Because her husband is emotionally unavailable. I don't judge. As a therapist, it's my part not to judge her. Yeah. And Even she's not able to take care of kids or household, that's different. कुछ लोग कुछ flowers होते हैं ना छुई हुई, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं. There are certain people. So I'm sorry, but oh my God. So these things, when as a therapist, when you are able to meet people, you're sometimes able to see the pain is too much. शायद आगे कुछ हो सकता है जो आपने बोला, चाहे वो आजकल मर्डर के केसेस आते हैं, कुछ होता है, हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिखता है, कुछ हो जाएगा. और वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं.
थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, जितना हमें नॉलेज होता है हमें पता चलता है, बट डेफिनेटली जब ऐसा कुछ होता है तो हमें बहुत डर लगता है। आपको क्या गिल्ट फील होती है, ऐसा कभी कुछ होता है कि तो कि मतलब नहीं, मैं guilty, रोक हमने तो अपना सकती थी? बेस्ट दिया ना। हमारा काम है एज ए डॉक्टर No, I just wanna know, yeah. सामने वाले को ये बताना ये प्रॉब्लम है, इसका ये हल हो सकता है। अब उस पर अगर कोई कर्म नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सबकी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, अपना बेस्ट ऑफ नॉलेज बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस दे रही हूँ। किसी केस में वो बहुत अच्छा जा सकता है, किसी केस में वो गलत भी जा सकता है, हम्म, बट अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो हम अपने आप को यही बोलते हैं हमने अपना बेस्ट किया है नॉलेज में उस टाइम पर, हमें जो लगा। और मैं मोस्टली कभी केसेस ऐसे होते तो मैं बोलती हूँ मेरे पास नहीं, किसी और डॉक्टर के पास जाइए, जो आपको कंफर्ट करता है उसके पास जाइए। राइट राइट, जान बचाना जरूरी है इंसान की। जान इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। बीवी को डिसऑर्डर था, मियाँ ने सुसाइड कर लिया, विल इट बी सेफ टू से कि मियाँ को भी कोई डिसऑर्डर था यहाँ पे? देखिए डिप्रेशन अगर है, हाँ, एम आई राइट, आप बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो, एम आई राइट, तो वो भी एक चीज है ना। आप होपलेस हो रहे हो और एक स्ट्रगल आ जाता है, डॉक्टर ने बोला है मुझे मानना है या नहीं मानना। बहुत बार ऐसा भी तो होता है ना, हम भी डिनाइल में रहते हैं। मैं कितना स्ट्रेस ले पाती हूँ वो मेरे पर भी तो डिपेंड करता है ना। आपको पता है, इवन आप एक कैंसर पेशेंट के साथ रहे, आप एक इंसान के साथ रहे जो डिप्रेशन या किसी भी डिसऑर्डर से गुजरा है, तो हाफ इलनेस तो आपका भी हिस्सा बन गई ना, क्योंकि आप स्ट्रेस तो कम, आप तो स्ट्रेस के इन्वायरमेंट में रह रहे हो ना, आप तो डिस्ट्रेस में रह ही रहे हो, तो आप तो कंफर्ट में आए ही नहीं ना, क्योंकि वो फैमिली एक्सपेक्टेशंस, एंड दिस गाय वाज द ओनली मेल चाइल्ड दे हैव। आप सचिए डॉक्टर होने के नाते मुझे बुरा लगा, तो आई स्टिल थिंक द बच्चे की लाइफ क्या थी। पेरेंट्स को गिल्ट हुई होगी कि उन्होंने उस टाइम माना क्यों नहीं। नो, इट वाज नॉट पेरेंट्स, इट वाज द चाइल्ड्स डिसीजन ना। नहीं, ये वाली बात जो थी कि हमारे यहाँ डिवोर्सेस नहीं होती, ये बच्चे बच्चे ने बोली थी। चैलेंजिंग ना, हम कई बार चैलेंज लेते हैं ना, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अब मुझे कोई पर्सनल उसमें नहीं था, मैं तो उसकी वरी कर रही थी, उसकी लाइफ की। मेरे को तो उसका स्ट्रेस लेवल वरी कर रहा था, कल को ये कुछ कर ना ले। हमें डर लगता है कई बार, क्योंकि आप एक ऐसे हालातों में हो, कई बार बहुत सारे लोग खुद को मार लेते हैं, खुद को सेल्फ म्यूटिलेशन करते हैं। ये यंगस्टर्स थाई पे काट के आते हैं, हाथ पे काट के आते हैं, कंधों पे काट के आते हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता, सिगरेट से जला लेते हैं। सो दोज आर पेनफुल थिंग्स। तो हम लोग तो इन चीजों को रेगुलर देखते हैं, कभी किसी ने किसी को मार दिया, कोई मार खा के आ गया, तो हर एक अपनी जर्नी से गुजर रहा है। तो एक्चुअली में जिसके साथ रेप हुआ है वो भी परेशान है, जिसने किया है वो भी परेशान है। आपने रेप विक्टिम्स के साथ डील किया है? रेप विक्टिम्स के साथ भी किया, रेपिस्ट के साथ भी किया। The hell? रेपिस्ट की क्या मेंटालिटी होती है? हाउ डू दे जस्टिफाई इट? सेल्फ कंट्रोल, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आर दे गिल्टी अबाउट इट? मैरिटल रेप्स तो नॉर्मल है ना। हाँ, वो तो नॉर्मल है। गिल्टी अबाउट गिल्टी होगा तो करेंगे क्यों, और उनको राइट भी तो लगता है ना। हो गया, हमारे तो पॉलिटिशियंस बोलते हैं लड़कियां गलती हो गई, तो अभी तो हाई कोर्ट्स की भी बहुत स्टेटमेंट्स आती हैं कि ये रेप नहीं है, अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। इवन कई बार आप कंसेक्सुअल रिलेशनशिप में भी होते हो, उसमें भी कई बार आप नहीं चाहते हो, तो भी आप फिजिकल इंटीमेसी करते हो बिकॉज पार्टनर को खुश रखना है, तो आपके लिए तो वो रेप ही होता है ना। वो आपकी बॉडी को पता है, बट लोग बोलते हैं कंसेक्सुअल सेक्स में कैसे रेप हो गया। वाओ, या बिकॉज आप सिर्फ रिलेशनशिप बना रहे हो पार्टनर को खुश करने के लिए, और आपके लिए वो रोजाना का काम है, या मेरा पार्टनर किसी और के पास चला जाएगा। तो हर तरह के लोग हैं दुनिया में। Wow. As a therapist, how do you deal with all this insanity? Isn't this too much for a person to like? आपका रोज का काम है ये सब सुनना, में से 1-1.5 घंटे से नहीं सुना जा रहा इतना सब कुछ। It's so painful to hear all this. या How do you deal with this? Like, do you get impacted और या पत्थर के हो गए हो? नहीं, पत्थर को तो नहीं, बट हाँ एम्पैथेटिक होते हैं, बट आई थिंक सो उसका लाइफ पर और आपकी पर्सनालिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव ये है कि जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है आप बोलते हो यार मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव गॉन थ्रू फिजिकल अब्यूज, यार शुक्र है मैंने लाइफ में सेक्सुअल अब्यूज तो नहीं देखा।
if you've dealt with sexual abuse victim, okay, Hmm. you find somewhere that sanity. Your Okay. life is clarity about goals. Hmm. Other person doesn't have clarity. You may have lesser money, you find, okay, wow, people have more money but they are not happy. Hmm. Hmm. At least रात को सोते वक्त चैन की नींद तो आती है, कोई गिल्ट नहीं रहता. You give your best. Hmm. And I think so my profession is very meaningful. Yes, it is. It gives you so much of मतलब contentment in the end of the day. You are helping people out. और You- इसका इम्पैक्ट जो आप बोल रहे हो ना, वो ये हो जाता है कि धीरे धीरे ना आप मतलब आप स्पेंड अपनी लाइफ को ज़्यादा इंजॉय करना शुरू कर दे. तो लोग नहीं भी है ना, आई कैन बी हैप्पी, आई एम नॉट क्राइंग यार. मतलब अगर आप मतलब मुझे अकेले छोड़ दोगे तो मैं ये नहीं हूँ मैं घर में रो रही हूँ. हाँ. आई एंजॉय, मुझे म्यूजिक लिसन करना है, मुझे मूवीज देखनी है, मुझे घूमने जाना है, मुझे शॉपिंग करना है. Hmm. I like a slow day then. This has become the part of, You've learned to appreciate life more. to start enjoying moments. Maybe you start believing in God more. Maybe just say you are with prayers, also the part of gratitude becomes the part of your life. But हाँ, मेरे ख्याल से मुझे लगता है मैं gossip को थोड़ा enjoy इतना नहीं करती हूँ. My conversations are more meaningful with people. और gossip में वो है मतलब enjoy किया बस वही छोड़ दिया. It's not bringing that thing home. Hmm. 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 तो वो मतलब रह जाता है. यहाँ पर एक चीज होता है और फैमिली और दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते. Hmm. वो तो एक बहुत होता है. एंड आई रियली लव, आई डू नॉट नो, इट डिपेंड्स अपॉन अदर पीपल, बट आई लव माई मी टाइम. Yes, me too. सो दैट्स गिव मी रिचार्ज माई बैटरीज. आप पहले से ऐसे हो या एज के साथ ऐसा हुआ है? नहीं, मैं एक्चुअली मैं बड़ी शांत बच्ची थी. मेरी मदर मुझे बिठा देती थी एंड शी विल से ये लड़की तो कुछ बोलेगी नहीं. ये नहीं दिखता. आपको तो दिखता नहीं बोलना है. आता है और आप बहुत बोलते हो. अच्छा है. नो, इट्स वेरी कंफर्टेबल टू बी विद यू. मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा मैं पहली बार मिली हूँ आपसे. अच्छी बात है ना, ऐसा ही होना हाँ. चाहिए ना. तो मजा थेरेपिस्ट आया. ऐसे ही थोड़े है. अगर ऐसा लगे कि मिलना ही नहीं है तो दैट इज लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफर्टेबल एंड दैट्स व्हाई आई एम अ थेरेपिस्ट. और मेरा काम भी तो यही है. You're in the profession of friendships. हाँ, बट आई स्टिल सेज आई एम एन इंट्रोवर्ट. यू वोंट बिलीव. Hane, I will believe you. I think this is just a side of yours. Because that's the हाँ. need of profession also. And Yes. definitely I am a non-judgmental sort of person. But it's again, I need to be on my comfort. That's more important. Because sometimes like people say मिलते नहीं हो 6 महीने सालों. Hmm. ठीक है, वो लाइफ में इतना रूटीन में काम करते रहते हैं, चलता रहता है. हाँ. आपको जरूरत नहीं लगती उस पैटर्न को ब्रेक करने की. आपको मजा आता है लाइफ में ऐसे ही द वे थिंग्स आर. यार ब्लेसिंग्स मिलती हैं बहुत सारे लोगों की. मतलब हम कोई किसी की लाइफ में बुरा हो रहा है, हालांकि अच्छा होता है, लोग बहुत कम बताते हैं हमें. हमें पता चलता बड़ी खुशी होती है. हाँ. तो ज्यादातर बहुत बार हमें नेगेटिव भी बहुत सुनने को मिलता है. दैट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोफेशन. यू हैव टू लिसन लॉट ऑफ नेगेटिव्स. There's a person I know. I'll be very careful of not giving any hints कि वो कौन है because he or she might watch this podcast. So this person's younger brother committed suicide, and this guy was only in class 7th around then, and they had a little बच्चों वाली fight. He went to his room. दरवाजे उसने खोले, खिड़कियां उसकी खुली हुई थी. उसने ट्राई नहीं किया कि मुझे कोई बचा ना पाए. उसने ट्राई किया कि कोई उसे बचाए. And he hung himself. I just cannot wrap my mind around it. इतना छोटा बच्चा सुसाइड कैसे कर सकता है? मीडिया का रोल भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है. बहुत पुरानी बात है. 15 साल पुरानी बात है ये. अभी की नहीं है. उस टाइम इतना ज़्यादा टीवी भी नहीं देखा जाता था और शायद सोशल मीडिया तो था ही नहीं. What could be a reason? Why did he do that? मैम, फैमिली पैटर्न में भी किसी का हिस्ट्री हो सकता है वैसा. जब हम थेरेपी करते हैं तो हम फैमिली हिस्ट्री में जाते हैं बहुत बार केसेस में. एज अ थेरेपिस्ट आपके मदर क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, उनको कोई इलनेस तो नहीं है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनकी लाइफ कैसे थी, वो सारी चीज़ें पूछते हैं. डिप्रेशन भी जीन्स में आ सकता है क्या? यस, ये भी जीन का हिस्सा हो सकता है. जीन्स का जो मैं बात कर रही थी, हैप्पीनेस में जेनेटिक सेट पॉइंट, यस यस यस. डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकते हैं. अनदर थिंग इज आप कितने ज्यादा सेंसिटिव हो. रिएक्शन आया ना ये, मतलब और इमेजिन द उसमें मुझे नहीं रिएक्शन. लगता वो भाई का रोल है.
मुझे नहीं लग रहा वो भाई का रोल है. दिस इज सिंपल. अगर आप कॉफी या चाय पी रहे हो, ठीक है, कप में कॉफी या चाय आपने पी कर रख भी दिया, अब ऊपर से मैं साफ पानी डाल रही हूँ उसमें, कप के अंदर से साफ पानी निकलेगा? जो अंदर है वही निकलेगा ना. आप समझ रहे हैं? जो अंदर है वही निकलेगा ना. और क्या पता वो सिर्फ मतलब एक्टिंग कर रहा था और सच में हो गया, ऐसा भी हो सकता है. मैं मुझे- डराने की कोशिश कर रहा था. मुझे यही शक है, क्योंकि उसने डोर लॉक नहीं किया, उसने विंडोज लॉक नहीं किए. शायद वो उम्मीद कर रहा था, बच्चा था. हाँ यार, ऐसे ट्राई गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते खेलते भी कुछ हो गया. Who knows? He died. और वो जो आप शक्तिमान जैसे सीरियल्स, आई एम सॉरी, हम फिक्शन वर्ल्ड में तो ज्यादा रहते हैं ना. ये सीरियल तो बहुत ही पुराना है ना, शक्तिमान. बहुत पुराना है. आप काफी ये नहीं पुराना. कह सकते. टीवी मीडिया पर जो हम दिखाते हैं वो कॉमर्शियली बिजनेस माइंडेड स्किल्स होता है. वो शायद उम्मीद कर रहा था कि कोई शक्तिमान उसे बचा लेगा. बहुत सारे लोग मुझे बोरिंग भी बोलते हैं, जैसे आज आपने बोला आई एम नॉट ए नॉटी पर्सन. बट डिपेंड्स अपॉन ना आप क्या देखना चाहते हो और कब देखते हो. अब आपका एनवायरनमेंट भी इतना लाइट है. या वाओ, इट वाज अ लवली सेशन. रोंगटे खड़े हुए कई बार, आंखों में आंसू आए, काफी चीजों की क्लैरिटी आई. यू डोंट नो हाउ मेनी लाइव्स यू गोना चेंज आफ्टर दिस पॉडकास्ट. होप सो किसी एक की भी बदल जाए, बहुत बड़ी है. बस बहुत बड़ी बात है. अग्री. अगर मैं किसी टॉक शो में किसी रिलेशनशिप के बारे में बात करती हूँ, वो इसलिए बात नहीं करती हूँ कि मुझे किसी के पेन का एहसास नहीं है. वो मैं इसलिए बात करती हूँ कि समाज में ये हो रहा है और इसको Awareness. आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. और ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बहुत बार होता है एज ए थेरेपिस्ट आप किसी को बोल देते हो तुम्हें ये डिसऑर्डर है, वो उसकी चैलेंजिंग ले लेते हैं. वो सिर्फ बीमारी नहीं समझते. हम दांत खराब है वो बीमारी समझ लेंगे और उसको ट्रीट करा लेंगे. बट जब भी कोई ये बोले कि आपको एक साइकेट्रिक इलनेस है या कोई बीमारी है, तो हम साइकोलॉजी से रिलेटेड, साइकेट्री से रिलेटेड बीमारी को बहुत बड़ा नाम दे देते हैं और उसे पागल करार देते हैं, विच इज़ नॉट देयर. आई वॉन्ट मेंटल इलनेस ऑल्सो शुड बी द पार्ट ऑफ अवर डेली रूटीन. जिस तरह आपको बुखार होता है, आप डायबिटीज़ के साथ जीते हैं, क्यों हम इस इलनेसेस के साथ नहीं जी सकते और उन्हें एक्सेप्ट करना. हाँ है मुझे ये बीमारी, क्या हो गया, बहुत नॉर्मल है. मैं स्ट्रेस में हो जाता हूँ, मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ, बहुत नॉर्मल है. मैं थक जाती हूँ, बहुत नॉर्मल है. एक्सेप्ट इज एक्नॉलेज इट. दैट्स योर कंफर्ट जोन एंड देन यू ओनली कैन गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जब तक आप उस कंफर्ट जोन में नहीं आएंगे, जैसे आप वो खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप आगे खुद को बदल भी नहीं पाओगे. क्योंकि हम बार बार बोलते हैं आपकी कंफर्ट जोन के बाद ग्रोथ है, कंफर्ट जोन के बाद ग्रोथ. पहले आप कंफर्ट जोन में तो आओ. आपको तो पहले कंफर्ट जोन ही नहीं पता अपना. मतलब आप बेड पे लेटे हो और मोटिवेशनल स्पीकर बन के मैं आपको बोलूँ दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ऐसे नहीं हो सकता है. पहले आपको अपनी पेन को एक्नॉलेज करना हो. हाँ मैं पेन में हूँ, हाँ अब मुझे इस पेन के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है, मुझे अपने ब्रेकअप के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है, मुझे अपने फादर मदर के जाने के गम के दुख के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है, मुझे किसी के मुझे मारा, किसी ने मुझे पीटा, किसी फाइनेंशियल लॉस के बाद मुझे हार कर नहीं बैठना है. आपने पहले एक्सेप्ट किया दर्द हो रहा है, दर्द होगा, पर अब आगे काम करना है. टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, लर्न फ्रॉम दोज फेलियर्स एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो ग्रोथ होगा, तब हम आप कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे. पहले कंफर्ट में तो आइए, पेन को भी महसूस करिए. तो कहते हैं ना दुख के बाद जब आप खुश होंगे तो खुशी का एहसास और दुख ना हो जाएगा. That is true. That is true. तो हंसी जरूरी है, खुलकर हंसना भी जरूरी है और स्माइल भी जरूरी है. हर तरह की हंसी जरूरी है. Yeah. That's there. Thank you so much, doctor. It was really a pleasure talking to you. Thank you very, very much. And I think the message is well received. If there's anything you want to add, please do. Otherwise, I You think are doing a good job, and I think so. I would say because of you, your viewers will watch this. The young generation will watch this. If they can learn something, that's, I think so. Your life is also well lived. yes, that is the intent. That is the intent. Thank you so much. Best wishes, Thank you. and thanks again for inviting. No, pleasure is all mine. I won't let that be taken away. Pleasure is all mine of inviting you. Thank you very much. Same here.